What if there is hygiene issue? What if the dress does not fit me properly as per my body type? Hotels. Do you go and live in hotels? Do you take your washroom with you? Do you take the toilet with you? No. You don't. But what you do, you trust the brand name. Right. So that was the idea, to create that space in the user's mind कि hygiene अच्छी है, कपड़ा बहुत अच्छा है, this is my place where I can even try to rent. And finally 2020 में first franchise store खुल गया है. ठीक है. And 9 more franchise stores signed up. एक हफ्ते बाद कोविड हो गया. दिल्ली एनसीआर में हमने अपने स्टोर्स खोल के, अलाउड नहीं था, हमने ऑल्टर करके कपड़े डिलीवरी करिए. ऑक्सीजन सिलेंडर्स डिलीवर होते और हमारे कपड़े डिलीवर होते. जस्ट टू गिव यू नंबर्स, शुरू में हम 300 रुपए के एक ऑर्डर के लिए 2700 रुपीज खर्चते थे. 2700 टू सर्विस फॉर अ 300 रुपी ऑर्डर. Okay, that's insane. Very good thought. Buy the basics and rent the iconic. जब कस्टमर उसी दिन आ रहा है स्टोर पर और बोल रहे हैं अभी चाहिए, शादी पे अभी जाना है और अभी पहनना है, तो वो सब आदमी है. लेकिन 10 years ago my friends were not renting from me. बोलते थे बहुत अच्छा काम है, very sustainable and all of that, but they were not my customers, honestly. There is a lot of stigma around rental things when it comes to dresses. Somehow get one product delivered to every household. How much water is required to build one ethnic garment in terms of liters? 24,000 liters. 24,000. 24,000 liters. Okay, let me process that. People are building two narratives. First, sustainable fashion, and the other is circular economy. We are sitting in 2026. You started back in 2016. 10 साल पहले, were we talking about these things, circular economy and sustainable fashion? Okay. As of now, I have not rented anything. Okay, when it comes to clothes. I'll make sure you do. दोस्तों, इंडिया में फास्ट फैशन एक मैसिव प्रॉब्लम बन चुका है. हर साल मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कपड़े वेस्ट होते हैं और दूसरी तरफ वेडिंग्स और स्पेशल ओकेजन्स पर लोग डिज़ाइनर्स आउटफिट्स पहनना चाहते हैं, लेकिन उनके प्राइस हर किसी के बजट में नहीं आती. यहीं से शुरू होती है आंचल सैनी की स्टोरी. वो दिल्ली हाई कोर्ट में एक सक्सेसफुल लॉयर थी, 6 साल तक प्रैक्टिस की, करियर स्टेबल था, प्रेस्टीजियस भी था. लेकिन 2016 में उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया, सब कुछ छोड़ के एक फैशन रेंटल बिजनेस शुरू करने का. उन्होंने लॉन्च किया रेंट इट बे. लेटर ऑन शी एक्वायर्ड फ्लाईरोब. दे ऑल्सो अपीयर्ड ऑन शार्क टैंक इंडिया सीजन 3. दिस इज वन ऑफ दोज कंपनीज दैट वेंट ऑन शार्क टैंक टू रेज फंड्स, लेकिन पोस्ट शार्क टैंक उन्होंने फंडिंग एक्सेप्ट नहीं की. आज उनका प्लेटफॉर्म डिजाइनर लहंगाज और लग्जरी आउटफिट्स रेंट करता है. थ्रू दिस पॉडकास्ट यू विल गेट टू नो आंचल सैनी की जर्नी कैसी रही है, कैसे उन्होंने एक अनएक्सप्लोर्ड मार्केट में फ्लाईरोब को बिल्ड किया. एंड ऑल्सो इफ यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू दिस स्पेस एंड बिल्ड समथिंग ऑफ योर ओन, you will have a lot of insights in this podcast. So enjoy. Hello Anchal, welcome to Startupedia podcast. Hi Jamil. कैसे हैं आप? Super excited to be with you. I am excited to have you. Reason being, you're operating in a fashion rental ecosystem. And when I started studying about fashion rental ecosystem or fashion rental market, I realized there are two angles to look at it. First one is emotional one and the other one is functional one. Why emotional one? For example, let's say I'm getting married and someone comes to me and suggests ki Jamil, there is this brand called Flyrobe who can rent you dresses for the wedding. तो मेरे दिमाग में एक बार पहली बार तो ये आएगा कि यार शादी एक बार ही तो करनी है and this is one of the most important days of my life. Why should I rent the clothes? And the second functional angle is ki what if there is hygiene issue? What if the dress does not fit me properly as per my body type? What if there is some other issues? Okay, still you have made a thriving business out of it, and there are other competitors who are operating in the same ecosystem. I realize that you are already operating in 30 plus cities with 21 stores as of now. So Achal, tell me, how did you get into this fashion rental market and what was the business strategy that you used? So tomorrow, if someone is trying to build a startup in the same space, they have some idea about how the market is, how it is being operated, and maybe they might make less mistakes while building something in it. So please. Sure, but before I explain the rental aspect, मैं वो please hygiene वाली बात कर लूँ. हाँ. Because it's always I want to answer it well. So see,
your wedding, you want to be the best dressed. Yes. Sure. But for what? But for the pictures, for the memories. Yeah. कितने लोग हैं वो शेरवानी को दोबारा पहनते हैं कभी भी नहीं, शायद I don't देखते भी think. नहीं है for years. It goes. Second is hygiene, etc. etc. You're absolutely right. तभी हमने एक brand name बनाया है. That Flyro माने people can trust the hygiene. And I love to give this example, which is hotels. Do you go and live in hotels? Yeah. Do you take your washroom with you? Do you take the toilet with you? No. You don't. But what you do, you trust the brand name. Yes. आप जिस भी होटल में रह रहे हो, ताज, हायत, वट एवर बिग ब्रांड, यू ट्रस्ट देम दैट द हाइजीन इज टॉप नॉच, वॉशरूम साफ है, बेडशीट्स लिनन बहुत क्लीन है और आप यूज कर रहे हो. सो दैट वाज द आइडिया टू क्रिएट दैट स्पेस इन द यूजर्स माइंड की हाइजीन अच्छी है, कपड़ा बहुत अच्छा है, दिस इज माई प्लेस वेर आई कैन इवन ट्राई टू रेंट. Because for us 99% users were first time trying renters. So we had to probably हमारा ओनस था फॉर द एंटायर इंडस्ट्री कि वो सर्विस अच्छी देनी है, नहीं तो वो दोबारा रेंट ट्राई नहीं करेगा. Right. Agree. So, Achal, how did you get into this? Because before this, like before starting Rented Bay in 2016, you were practicing law at Delhi High Court. How did that transition happen? What was that moment that where you decided ki let's drop this law thing and get into startup space? Yeah, and the moment was let's drop this, a lot of money coming every month and get into this garib life. But yeah, when you think about this now, I see logically back then na two things they excited me. So Delhi में ना हाई कोर्ट्स की छुट्टी होती है, समर हॉलीडेज होते हैं हर लॉयर के. आई डोंट नो इफ यू नो दैट, इट्स अ मंथ लॉन्ग वेकेशन. या ऑल लॉयर्स डोंट वर्क फॉर अ मंथ, एवरीबडी इज वेकेशनिंग ड्यूरिंग समर मंथ्स. हमारे समर हॉलीडेज, विंटर हॉलीडेज सब होते हैं. सो दैट समर हॉलीडेज, दिस वाज वन एस्पेक्ट. वी स्टार्टेड विद माय अदर सेम को-फाउंडर्स. इन फैक्ट वी स्टार्टेड अ ब्रांड, वी स्टार्टेड अ टेक बिजनेस कॉल्ड प्रोंतो डाइनर. फूड टेक शुरू किया था हमने. सो जैसे डाइन आउट करता है, सिमिलर स्पेस में थे. एंड आवर आइडिया वाज टू basically pre-order food from a nice restaurant, and by the time you reach, it's made. Like when it was basically quick serving sort of a thing. आपके पास पैसे हैं, मूड है, चॉइस है, फिर भी आप वो बर्गर या रोल क्यों खाओ, आप प्री ऑर्डर करो खाना, जब तक आप जाओगे गुड फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट विल सर्व यू द मील. दैट वाज द आइडिया. वी वर्कड देयर फॉर अ मंथ and then immediately dropped it because सब लोग पार्ट टाइम थे. I went back to my law, everybody went back to their businesses or their respective jobs, and we realized कि कुछ भी नया कर रहे हो ना तो full time तो देना पड़ेगा. At least one driver has to be full time there. बाकी लोगों के contributions अगर part लिए हैं तो part time रह सकते हैं. So it immediately ज़्यादा नहीं खींचा हमने उसको, 2-4 महीने 6 महीने काम करके छोड़ दिया. This was one driver. Second was so when you see lawyers, if you go to like the highest courts, like if you go to the Supreme Court, you would see 95-year-old people still going to the court. So as a lawyer, what you develop is here. You develop your brain. You are not creating any asset. आप आपका दिमाग है, आप वो बच्चों को पास ऑन नहीं कर सकते हो. For example, of course, you create spaces for them as any business would. आप उनके लिए opportunities create कर सकते हो, but आप जैसे खुद grow कर रहे हो, it's not an asset that you can sell. I can't sell my brain. So the idea was to probably move out of the space, create an asset कि 10-20 साल उस पर काम करो, इसको कुछ $1 billion में बेचो, and at least in cash. Not necessarily कि मेरे बच्चे को भी लॉयर बनना है या मेरे बच्चों को वही सेम बिजनेस करना है जो मैं कर रही हूँ. So the idea was to can I create an asset? So that was the thought which made me move to this rental space. That was the switch. And बिल्कुल वो वाली कहानी नहीं थी boring corporate life. I used to love what I used to do. मैं कोर्ट जाती थी रोज. It was high court litigation, arbitration, matrimonial matters, CBI, so exciting stuff. So boring नहीं था वो कहीं से भी. Awesome. You mentioned about that food tech startup that you were trying to build. What happened to that? We closed it immediately. Why? Because कोई था ही नहीं काम करने के लिए. जबकि we grew well. मतलब within like a span of less than 60 days, we had 100+ restaurants tied up. Yeah, so we were really growing fast. But then we realized कि एक जने को पूरा रहना पड़ेगा. Nobody was willing to take that plunge back then. कि full time कोई नहीं रहेगा, तो we stopped. So when you dropped your law career, so
did you think of getting into that food tech thing? No. So after उसके वो food tech के 1 साल बाद this happened. So this was already in plan. It wasn't like I dropped and I thought क्या करूँगी. Rental business came to our idea. We started working on it. हमने back end research सब कुछ कर लिया था. Then I dropped my law. कि let's just start this. Okay, awesome. So to summarize this, the reason behind leaving your law career and getting into a startup space was कि you realized कि business अगर करने जा रहे हो तो भाई full time लगेगा. ऐसे part time के साथ 10 लोग बैठ के नहीं कर सकते क्योंकि you have the other things to take care of. The second thing is to build asset, right? कि ultimately like 15 years 20 years down the line you have something as you can call asset or maybe something for your next generation. Which you did not say in law, is it? Yeah. Anchal, you started your company as Rent It Bay in 2016, then acquired Flyrobe in 2019. First, help me understand what was going on with Flyrobe and with Rent It Bay that you planned कि let's acquire इसको. And what was the company's status Flyrobe का उस वक्त पे जब आप acquire कर रहे थे? So both brands have been in the same space. Flyrobe was way larger than Rented Bay because पैसे ज़्यादा इन्वेस्ट करे गए थे, काफी ज़्यादा इन्वेस्ट करे गए थे. कितने पैसे इन्वेस्ट हुए थे? $10 million. $10 million. $10 million have gone into branding and building Flyrobe. But दोनों का ना track same था. What we did initially was we rented Western garments via an app. जैसे डोमिनोज पिज्जा आपके पास आता है वैसे ड्रेस आएगी, आप पहनिए उसको एंड देन गेट डन विद इट एंड वील सेंड इट बैक. Send it back to us and we'll clean and we'll do all of that. So पहले was westerns online, second phase was ethnics online, then here the realization was कि कितने Indians जाकर online लहंगा खरीद रहे हैं. Right. It's a space where we love to go to a store. पूरी family जाती है to try it out, to touch and feel and see now the technology is really evolved कि आप एक फोटो को justify कर सकते हो ethnic फोटो को. Back then नहीं कर सकते. It was not there. No, it wasn't there. So second phase was ethnic online and then the realization was कि पूरा PMF तब सेट बैठ रहा है जब स्टोर्स हैं, ऑनलाइन ड्राइव करेंगे कस्टमर को और ऑफलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे. सो इट्स एन ओमनी चैनल बिजनेस. ये पूरी एंड इट टुक अस टाइम टू अंडरस्टैंड दिस व्हिच इज अबाउट 3 years in this space. Both brands were same कि हम सब पहले शुरू में we thought we'll build a tech product कि हम ऐप बेस्ड बना रहे हैं, इट्स अ कंप्लीटली टेक प्रोडक्ट. देन वी slowly understood कि ऑफलाइन स्टोर्स तो चाहिए ही चाहिए. So this was the trajectory and as being very new in this space, we were competing brands, but हम बात करते थे एक दूसरे से. Just to understand what's happening with you and what's happening with us. क्योंकि हम लोग नया टेस्ट कर रहे हैं. कोई EMI चला रहा है, हम मंथली सब्सक्रिप्शन कर रहे हैं, हम लग्जरी प्राडा रेंट कर रहे हैं महीने में कि प्राडा बैग्स भी रेंट कर रहे हैं, सनग्लासेस भी करेंगे, वॉचेस भी करेंगे. So everybody is testing. It's a completely new market. So talking to each other made sense for us. कि हम सब खाली ग्राउंड में हैं, let's understand कि what's doing well ताकि हम सेम रिपीट ना करें मिस्टेक्स. So this was our planning. And मैंने प्लान किया था कि ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं. आई कुडंट इवन थिंक ऑफ इट. लाइक फॉर एग्जांपल, हमेशा एक बहुत लेम सा एग्जांपल देती हूँ. लाइक फॉर एग्जांपल you're owning a burger joint से I'm in Delhi, मैं एक बर्गर वाला रेस्टोरेंट चला रही हूँ जो दिल्ली में फेयरली पॉपुलर है और मुझे मैकडोनल्ड्स को एक्वायर करने को मिल जाए. सो दैट वाज माय स्टोरी. या बुजुक लाइक दैट. हाँ कि ये तो बिल्कुल वो वाली बात हो गई कि चीजें मैं छोटा शार्क और किसी बड़े शार्क को खाने की बात कर रही हूँ. एग्जैक्टली राइट. या So again, help me understand कि since Flyrobe has already raised $10 million, पैसे बहुत हैं उनके पास, 3 साल हुए हैं, and then in 2019 you plan to acquire them. यहाँ पे what was wrong with Flyrobe? क्या कर रहे थे वो? उनके पैसे खत्म हो गए थे, नेक्स्ट राउंड नहीं रेस कर पा रहे थे, मार्केट फिट नहीं मिल पा रहा था, उनको क्या दिक्कत आ रही थी? सो कुछ रॉन्ग नहीं था, बट वो जर्नी थी. सो व्हाट रियली हैपेंड, और ऐसा नहीं था कि मैंने बोला कि तुम मैं एक्वायर करने आ रही हूँ, मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली उनके तरफ से आया. सो व्हाट रियली हैपेंड, $10 million में 3 साल का it's invested by a highly it's a VC जिसको immediate return चाहिए. And see when I started मुझे पता था 10 साल की तो जर्नी है ही है. We are changing mindsets. ऐसा exactly ऐसा नहीं है कि कंज्यूमर ऑलरेडी रेंट कर रहा है तो उसको बोल रहा है वहां से मत रेंट कीजिए, हमसे आके रेंट कीजिए. कंज्यूमर नहीं रेंट कर रहा है, वो बाय कर रहा है. ओला उबर वाली कहानी है. When Uber started तब वो I don't know, मैं हमेशा ये बताती हूँ कि वो एक मर्सिडीज भेजते थे 5 किलोमीटर के रन के लिए $50 में. Yeah, that's how people started to use Uber. टैक्सी के लिए नहीं, मर्सिडीज के रन जॉय के लिए. So
कितना पैसा भाया होगा उस स्पेस में और कितने पैसे के साथ टाइम भी लगा होगा, राइट? सो सिमिलरली फ्लायरॉप के साथ क्या हुआ, $10 million थे बट स्पेंट ओवर 3 years. पहले वेस्टर्न रेंटल ऑनलाइन, प्रोडक्ट चेंज किया, एथनिक रेंटल ऑनलाइन, मॉडल फिर से चेंज किया, अब ऑफलाइन कर रहे हैं हम स्टोर्स के साथ, ऑनलाइन पुल के साथ. सो और अब स्टोर्स फटाफट खोल दिए सारे, 6 स्टोर्स खोल दिए एंड बर्न काफी हाई है. फेसबुक एड्स में 2-2 करोड़ रुपए लगाया जा रहा है पर मंथ. हाँ, बट राइटली सो मार्केट टेस्ट करने के लिए कि कितना वापस आ रहा है रेवेन्यू वाइज. सी इफ यू सेल अ टी शर्ट, आप 2 करोड़ रुपए फेसबुक में लगाओगे, आपको रिजल्ट आ जाएगा, आपको 4-5 करोड़ का रेवेन्यू आ जाना चाहिए. बट इस दिस स्पेस में आप किसी ने हमारा एड देखा, उसको अच्छा भी लगा, बट उसकी शादी नहीं है अभी 2 साल तक. सो आपको इमीडिएट रिजल्ट नहीं आएगा. किसी ने एड देखा, फिर नेक्स्ट टाइम ओहो मैंने खरीद लिया, ओके नेक्स्ट टाइम, लेट्स डू दिस. सो मेनी यूजर्स हु डिस्कवर अस लाइक 2-3 years ago, दे कम एंड ट्रांजैक्ट नाउ. सो वो टाइम लगता है एंड देन वर्ड ऑफ माउथ स्पेस धीरे धीरे बिल्ड हो रहा है, सेलिब्रिटीज बात कर रहे हैं. सो ऑल ऑफ दैट टुक टाइम. सो इन एनी वे 3 years तक द फंड दैट दे हैड, VC फंड, उन्होंने बोला कि 3 साल में जितना ग्रोथ चाहिए था हमें बिजनेस में उतना नहीं मिला है. सो वी आर नॉट पुटिंग इन मोर मनी, लेट्स वाइंड दिस अप. दे फाउंडर्स को राइटली टाइम दिया कि 4 महीने हैं और पैसा नहीं आएगा, इसको वाइंड अप कर लो. बट फाउंडर्स वर ऑप्टिमिस्टिक एंड विद factually optimistic बिकॉज उनके पास 2-4 और लार्ज प्लेयर्स थे हु शोड इंटरेस्ट इन दिस स्पेस. बट यहाँ पर आई थिंक जो फाउंडर से गलती बोलो या व्हाट दे डिड वाज, उन्होंने स्केल कम नहीं किया बिजनेस का. दैट टाइम 150 एम्प्लॉइज, अबाउट 25 crores अ ईयर का बर्न था. उन्होंने 3-4 महीने उसी स्केल पे चलाया क्योंकि पोटेंशियल डील्स थी हाथ में, बट वो डील्स नहीं हुई. एंड वो 3-4 महीने आफ्टर दैट फंड, द VC फंड वाज ओवर, वो 3-4 महीने से पुल ऑफ करने के लिए दे हैड टू टेक पर्सनल लोन्स. सो दैट्स वेयर द कैच वाज. वो पर्सनल लोन्स ले लिए उन्होंने, पर्सनल लाइबिलिटीज में आ गए और वो पोटेंशियल स्ट्रेटेजिक डील्स नहीं हुई. एंड देन दे अंडरस्टूड कि हमने पैसे रेज किए. बैक देन वी हैड रेज जस्ट 1 round. Okay, and what was the amount you raised? 1.5 crores. 1.5 But उनको नहीं मालूम था. अच्छा. So this was not public? This was undisclosed. No, अच्छा, this wasn't public then. Okay. So उनको लगा कि यार उन्होंने 10 million किया तो हमने भी 4-5 तो किया ही होगा. So they picked up the phone saying कि listen, we are thinking of selling it. Do you want to buy it? And we've just raised. मेरे को उसका हफ्ता पहले मेरे को फर्स्ट ट्रांच आया था. So I immediately called up my investor कि ऐसा हुआ है, करे क्या, मतलब आई एम ऑल्सो लिटिल शेकन की जो हमसे आगे भाग रहा है वो कह रहा है मुझे बेचना है. देन ही सेज कि लेट्स गो, बात करके आते हैं. फिर हम गए. फिर दिस वाज लाइक अ लॉन्ग स्टोरी कि वो डील करते 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 हमने बहुत कम पैसों में अक्वायर करा उसको, व्हाटएवर दे वर आस्किंग, उसको अक्वायर करा. पर वो भी अक्वायर करने की भी पूरी 1 साल की जर्नी थी. 2019 से लेकर 20 तक हमें पूरा साल लगा वो एक्विजिशन कंप्लीट करने में. राइट. सो बेसिकली इफ आई अंडरस्टूड प्रॉपर्ली, from 2016 to 2019 जो फ्लाईरूप जो कर रहा था, they started with western clothes, 15 to 19. हाँ, 15 to 19, right. And then they got into ethnic, and then they like back to back opened stores, physical stores, क्योंकि उनको रियलाइज हुआ कि यार लोग ना ऐसे ऑनलाइन रेंट करने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहे, मे बी ऑफलाइन में दे विल, क्योंकि अगेन टच एंड फील एंड वो कैसा दिख रहा है मेरे ऊपर मैटर्स अ लॉट. एंड दैट वाज द जर्नी ऑफ फ्लाईरूप फ्रॉम 15 to 19. एंड इस दौरान उन्होंने काफ़ी बर्न कर लिया. अंडरस्टूड. हेल्प मी अंडरस्टैंड नाउ कि रेंट इट पे की जर्नी कैसे दिखती है 2016 to 19-20 तक. सो रेंट इट पे ने जब शुरू करा, हमने वेस्टर्न्स में ना काफ़ी कैटेगरीज में एक्सपेरिमेंट करा. फ्लाईरूप ओनली हैड क्लोथ्स एंड एक्सेसरीज, वेस्टर्न गारमेंट्स. हमने बहुत कैटेगरीज करी. हमने गारमेंट्स करे, क्लोथ्स, विमेन फोकस थे हम पहले. ठीक है. वेस्टर्न वेयर फॉर विमेन, एक्सेसरीज में हमारे पास वॉचेस, सनग्लासेस, लग्जरी हैंडबैग्स, ज्वेलरी, सब में काम किया. वी वर्कड ऑन सब्सक्रिप्शन मॉडल ऑल्सो. फैशन सब्सक्रिप्शन, महीने के आप 4,000 रुपए दीजिए एंड यू गेट एक्सेस टू अनलिमिटेड क्लोथ्स. सो आई कैन रेंट एनीथिंग, रेंट अनलिमिटेड क्लोथ्स. एंड दैट टाइम वी हैड वेस्टर्न. सो वेस्टर्न्स माने ऑफिस वेयर, डेट वेयर, ब्रंच वेयर, पार्टी वेयर, ऑल ऑफ दैट, इवनिंग वेयर, ऑल ऑफ दैट. सो वेकेशन टाइप्स. सो हम लोगों ने ये छोटे स्पैन में हमने बहुत एक्सपेरिमेंट कर लिए. बट इमेजिन आई एम टॉकिंग अबाउट 10 years ago. यार तब तक ना people couldn't understand rental and we were trying to do subscription, this that, हम इतना सब कुछ दे रहे थे. हाँ, उस टाइम तो आई गेस ई कॉमर्स एक्सप्लोड होना शुरू हुआ था, राइट. इंटरनेट पेनिट्रेशन शुरू हुई थी 16-17 में, राइट. सो सिमिलरली एंड सेमली कंप्लीटली पुल ऑनलाइन था. ऑनलाइन डिस्कवरी, ऑनलाइन पुल, हम सर्विस भी ऑनलाइन करे थे. देन वी ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड एथनिक्स, विमेन फर्स्ट, एंड देन वी एडेड मेन ऑल्सो. देन स्टोर.
हमने अपना फर्स्ट स्टोर खोल लिया अपने पैसे, एंड वी आर बूटस्ट्रैप बाय द वे, अच्छा स्टिल यू आर बूटस्ट्रैप, वी आर बूटस्ट्रैप। शुरू में टेक भी सब कुछ खुद फर्स्ट स्टोर तक वी वर बूटस्ट्रैप, फर्स्ट स्टोर के बाद वी पिक्ड अप आवर फर्स्ट फंड। सो फंड आपने रेज किया 2019 में, 18 में, 2018 में, यस 18 में रेज किया, 18 एंड 2019 बिगनिंग बेसिकली। ऑसम। मुझे अब थोड़ा ये समझना है कि you realized कि Flyrobe is about to sell their company and you are going to buy it maybe, and then COVID happened. Did that not shake you कि यार कोविड में तो ये धंधा ही बंद हो जाएगा, और हम लोग बात कर रहे हैं एक कंपनी को एक्वायर करने की, वैसी कंपनी जिसकी हालत पहले से हम खराब है। कर चुके थे ऑलरेडी। अच्छा ये कर लिया था? यस, सो सी और उसके बाद COVID हुआ? या सो व्हाट हैपेंड, हैं, आवर प्लान्स आर वेरी सिंपल। हैं, हमको लगता था कि कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस है ये, ठीक है, क्योंकि रेंटल मतलब आपको वो कम्युनिटी चाहिए जो ऐसा सोच रही है कि हमें रेंट पे लेना है, यंगस्टर्स, जेनजीज, मिलेनियल्स, यंग ये कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस था। तो हमारा थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर था, हम 2 स्टोर खोलेंगे अपने, उसके बाद दूसरे शहरों में फ्रेंचाइज देंगे, ठीक है, बिकॉज फ्रेंचाइज माने गिव इट टू अ प्रोमिनेंट पर्सन जो उस सिटी को अच्छे से पहचानता है, एंड विल बी एबल टू ग्रो दैट बिजनेस वेल। आप पूरा अपना सपोर्ट दीजिए, प्रोडक्ट, SOP सब कुछ आप सपोर्ट दीजिए, बट लेट द पर्सन हु नोज द सिटी वेल उसको ग्रो करने दो सिटी। ये हमारा स्पेस था। सो हमने जब उनको अक्वायर करा 19 से 20 हम वैसे ही स्ट्रगल कर रहे थे, ठीक है, हमने अक्वायर तो कर लिया, अब जेब में पैसे नहीं थे लेकिन तो हमको 1 साल लगा वो पूरे पैसे देने के लिए उनको। ओके, we had no money and we thought that हम तो सुपर फाउंडर्स है, हम तो पैसे ऐसे रेज कर लेंगे, छोटा सा तो अमाउंट है, 5-6 करोड़ तो कोई भी दे देगा। 6 करोड़ में एक्वायर किया, 6 करोड़ में अक्वायर करा, बट वो 6 करोड़ किसी ने नहीं दिए। पीपल लव्ड मी एज अ फाउंडर, कह रहे भाई वी लाइक योर आइडियाज, बट हम एक्विजिशन के पैसे नहीं देते। कोई तुम्हें पैसे देता कि खरीद लॉलीपॉप जाके खरीद लो, पैसे मिलते हैं लॉलीपॉप बनाने के। सो दे से कि यू गो एंड बाय दिस, उसके बाद ग्रोथ को फंड करेंगे हम, ये एक्विजिशन खुद कर कराओ। So 19 to 20 we really struggle to get that money, थोड़ा बिजनेस से कमाया, बिजनेस भी बर्निंग है, उसको भी थोड़ा प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ लेके आ रहे हैं। 25 करोड़ का बर्न था, 1 साल तक मैं बर्न को कम करके 3.5 करोड़ पे लेकर आई। 25 करोड़ से 3.5 करोड़, 3.5 करोड़ पे, और साथ में उनको 6 करोड़ जुगाड़ रहे हैं वो पैसे देने के लिए। सो ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग, एंड फाइनली 2020 में फर्स्ट फ्रेंचाइज स्टोर खुल गया है, ठीक है, एंड 9 more फ्रेंचाइज स्टोर्स साइंड अप। सो वी आर हैप्पी कि चलो 1 साल का स्ट्रगल प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ आ गए, इनके पैसे दे दिए पूरे, 1 स्टोर लॉन्च कर लिया हमने फ्रेंचाइज, और अब बाकी के पास फ्रेंचाइज खोलेंगे, अब दुनिया सेट है। 1 हफ्ते बाद कोविड हो गया। फिर क्या होता है? सो दैट कोविड, लाइक फॉर एवरीबॉडी कोविड वाज अ ब्लो, सब बिजनेस के लिए फटी थी, बट फॉर अस इट वाज अ डबल ब्लो। राइट, कि अभी रेंट कौन करेगा, लोग घर में ही है, बाहर जा नहीं रहे, कपड़े पहन के आ रहे हैं, राइट, देन इट वाज अ डबल ब्लो। हाँ, सो हाउ डिड यू नेविगेट थ्रू कोविड? सो नाउ व्हाट हैपेंड, कोविड में हमारे ओन स्टोर्स चल रहे हैं और एक फ्रेंचाइज स्टोर रहा है, एंड बड़ा सा वो है, वेयर हाउस है, लॉट ऑफ पीपल, सो वी हैड टू स्क्वीज इन, मतलब हमको सब कुछ कट ऑफ करना पड़ा, ले ऑफ करने पड़े एम्प्लॉइज, नो मैटर कितना भी दुख हुआ। जो स्टोर्स अक्वायर किए थे फ्लाईरोब से सब बंद करने पड़े। ही केप्ट 1 स्टोर, 1 marquee store, the flagship store, जो 6,000 square feet lavish store, we kept that, and our first franchise sailed through COVID very well. ये कहाँ पे था? Bangalore. First franchise in Bangalore sailed through COVID, आज भी चल रहा है वो store अच्छे से। So COVID को survive करने के लिए, see I think जैसे कोविड हुआ सब सेम थे, सब क्लूलेस थे कि अब क्या होगा, मे बी हफ्ता 2 हफ्ता, 10 days, 1 month, everybody was hoping कि भी खुल जाएगा, so we were also on the same space. Then we realized कि नहीं हो रहा है, so immediately this was first 2 months I was also, my belief in this space had gone कि भाई कुछ नहीं हो सकता, बट अभी तो ऑप्शन ही नहीं, बस सर्वाइवल का ऑप्शन है। सबको एम्प्लॉइज को इतना राशन दो that they can live, nobody should die right now, that was first survival. Then what happened, second survival में my belief in the space came back, because शादियां अलाउ करी थी, you remember 20 people home weddings, और सिर्फ नेसेसिटीज खोले थे। बिल्कुल, हाँ। अब शादी जिसकी हो रही है उसके लिए कपड़ा नेसेसिटी है, वो तो, पर वो अलाउड नहीं है, राइट। देन वी रियलाइज सो मेनी ब्राइड्स एंड ग्रूम्स आर मैसेजिंग कि हमको कपड़े चाहिए और हमारी शादी है, बट हमें तो अच्छे कपड़े पहनने, फोटोज तो आएंगी ना हमारी। देन वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि कैसे सर्विस करें। दिल्ली एनसीआर में हमने अपने स्टोर्स खोल के, अलाउड नहीं था, हमने ऑल्टर करके कपड़े डिलीवरी करिए, लोगों को करिए, ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवर होते और हमारे कपड़े डिलीवर होते थे, क्योंकि जिनकी शादी है उनको तो होना था। बट ऑफ कोर्स ब्रॉडली, सिंस वी आर मेजर रेवेन्यूज कम फ्रॉम वेडिंग गेस्ट्स फॉर अस, वी आर अ वेडिंग गेस्ट फोकस सर्विस, तो रेवेन्यूज वर मेजरली हिट, बट उसके साथ हमने एक्सपेंस भी कट डाउन करा। सो देन इट वाज अ रीस्टार्ट, मतलब आप स्विच ऑफ हो गया था, एंड देन इट वाज अ रीसेट बटन अगेन। एंड आई फील दैट पोस्ट कोविड, दो वी स्ट्रगल्ड फॉर लाइक कपल ऑफ years, but the growth has been phenomenal after that.
उससे बहुत चीजें बदली हैं, हम्म, माइंडसेट जैसे चेंज कि? हुआ है लोगों का, अननेसेसरी कपड़े स्टोर नहीं करने हैं लोगों को घर मर, यू नो दे वांट एक्सेस इज मोर देन ओनरशिप, ऑल ऑफ दोस थिंग्स हैव सस्टेनेबिलिटी इज अ नैरेटिव दैट इज नाउ गेनिंग पॉपुलैरिटी पोस्ट कोविड। तो काफी चीजें बदली उसके बाद इन आवर फेवर। Understood. I think, I mean, COVID was the most uncertain time for people starting out. And if you have survived it, I mean, that's a commendable And job. being a retail space, हाँ, exactly. कपड़ों का Retail business हो and, गया। that to renting thing, Yeah, right? yeah, कि सेल कर रहे हो तो तब भी थोड़ा ठीक है, रेंट करना is again a big deal, especially in that time. You mentioned about sustainable fashion, right? And when I was studying about this whole space, I realized that people are building two narrative. First, sustainable fashion, and the other is circular economy. है ना कि हम लोग कम खर्च करेंगे, कम बर्न होगा, वेस्ट कम होगा एंड एवरीथिंग. और तो मुझे फिलहाल तो ये समझाओ कि आई मीन सिंस दीज टर्म्स आर कमिंग इन टू पिक्चर नाउ, लाइक अभी वी आर सिटिंग इन 2026, यू स्टार्टेड बैक इन 2016. 10 साल पहले were we talking about these things, circular economy and sustainable fashion? We were, We as a were? company, we were 100% because these are the elements. Yes. So we call ourselves a green fashion business. Hmm. But क्या वो लोग perceive कर रहे थे? Mm-hmm. I don't think so. So that was not in mainstream. From people's perception, no. Hmm. But from our the way we operate, the way we started, 100% yes. We are a sustainable business. And दो चीजें मैं बताती हूँ. सो आई थिंक इन इंडिया राइट नाउ हम सस्टेनेबिलिटी सर्कुलरिटी को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हैं. बहुत सारे इसके अंदर बिजनेसेस आते हैं. रिपेयर इज वन, रीवेयर इज वन, सो मेनी थिंग्स. बट आई फील आई वाज एबल टू क्रैक दिस कि हमने सस्टेनेबिलिटी, yes we are able to capture the price consciousness that Indian mindset have. अगर मैं बोलूँ ये 2000 की चीज़ है, सस्टेनेबल है, 5000 दे दो, then people think about it. Right. I am still saying कि आपका 50,000 रुपए बचकर आप 5000 में ले रहे हो. You're saving money. Yes, you're supporting of sustainability angle of it. It makes sense to people. 2016 में आई मीन मुझे याद नहीं कि मैं क्या कर रहा था. आई मस्ट पे इन कॉलेज, ठीक है, सेकेंड ईयर में. तो उस टाइम पे ये फैशन, सस्टेनेबल फैशन और सर्कुलर इकोनॉमी वाज नॉट इवन वर्ड इन माय हेड. आपके दिमाग में उस टाइम पे क्या चल रहा था? वाज इट लाइक योर पर्सनल एक्सपीरियंस और समथिंग जिसने आपको पुश किया कि यार दिस इज अ स्पेस जो शायद आगे जाके ब्लो होगा, या ये ऐसा स्पेस है जहाँ पे जो फटने वाला है आगे. व्हाट वाज लाइक, हाउ डिड यू फिगर दैट आउट? So personally I was also consumer of fashion and hoarding fashion. और प्रॉब्लम सिंपल थी. ओके. लड़कियों को बारे में सोच के करा था हमने. आज की डेट में मेन स्ट्रीम 50% मेन आर कस्टमर्स टुडे, बट एनी वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट विमेन. क्लोजेट इज फुल एंड आई हैव नथिंग टू वेयर. क्यों? क्योंकि वो कपड़ा आप एक बार ही पहन चुके हो, आपको दोबारा नहीं पहनना. सो रिपीटेबिलिटी वाज एन इशू. कि वो फोटोग्राफ बैक देन फेसबुक, अभी इंस्टाग्राम पे एक फोटो आ गई, आपको दोबारा नहीं पहनना है. सो व्हेन वी स्टार्टेड वी थॉट ऑफ दिस, देन वी रियलाइज कि वेस्टर्न्स में हमारा कैक कम नहीं हो रहा था. अच्छा. कम हो ही नहीं रहा था. जस्ट टू गिव यू नंबर्स, शुरू में हम 300 रुपए के एक ऑर्डर के लिए 2700 रुपीज खर्चते थे. 2700 टू सर्विस फॉर अ 300 रुपी ऑर्डर. ओके, दैट्स इनसेन. Why? Because you are trying to give that service to the user. अगर आप एक 300 रुपए का रेंटल ड्रेस ले रहे हो हमसे, आपको आपका डब्बा आ रहा है शनेल के क्वालिटी के बॉक्स का, बॉक्स का क्वालिटी शनेल क्वालिटी, रिबन पैक्ड, खोलेंगे अंदर रेंटेड बे के डब्बे में तब बटर पेपर में ड्रेस पैक्ड है, पर्सनली डिलीवर हो रहा है. पर्सनल जो डिलीवरी बॉय आ रहा है वो एक गारमेंट्स का साइज एक्स्ट्रा लेके आ रहा है और पोर्टेबल स्टीम आयरन साथ में लेके आ रहा है. आप ट्राई कर रहे हैं, फिर जो आपको साइज ठीक आएगा वो हैंगर में डाल के आपके घर में फ्रेश आयरन कर छोड़ के आ रहा है. दिस वाज द सर्विस. So people who had used that service back then for $300 are now renting for 30,000 rupees also. Oh. So it was basically, अगर आपको कुछ नया देना है तो आपको सबसे पहले तो एक्सपीरियंस देना है ना. पैसे और बाकी सब तो बाद में आता है. Right. So but anyway coming back then वेस्टर्न्स में हमारा कैक कम नहीं हो रहा था. बहुत सालों, ऑलमोस्ट year and a half कैक कम नहीं हो रहा था. We realized that शायद ये सर्विस सही नहीं है, प्रोडक्ट सही नहीं है. क्योंकि कितने लोग हैं जो हर रोज नई ड्रेस पहन के आ रहे हैं. मैंने ये पिंक कलर का कुछ पहना है आज, आई विल वेयर इट अगेन, आई डोंट माइंड वेयरिंग इट अगेन. देन वी रियलाइज कि हमको ना ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जिसकी रिपीटेबिलिटी लिटरली जीरो है. वो है एथनिक स्पेस, द हैवी आइटम्स, एंड बहुत एक्सपेंसिव है. देन दैट वाज द रीजन टू स्विच द प्रोडक्ट.
Okay, that's how you like shifted from Westerns- Western to ethnic. Ethnics, yes. Awesome. I think I mean what you talked about the CAC thing ना. I feel why this was high is एक तो इस particular space की awareness बहुत कम रही होगी उस time पे. I think अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है as I believe. और दूसरा the experience thing that you talked about, the kind of experience you were giving to your customers, and that actually that's where the money was going, right? Awesome. एंड ऑल्सो आई थिंक हम लोग हमारा मोटो फिर ऐसा बन गया बाय द बेसिक एंड रेंट द आइकॉनिक फ्रॉम द सस्टेनेबिलिटी एंगल ऑल्सो Right, right, right. बाय Buy द the बेसिक basics and आप rent. एक बेसिक लो आपने मैंने जो पहना है खरीदो और उसको मल्टीपल बारी पहनो 2 बारी पहन के मत फेंको उसके बाद आइकॉनिक्स को आप रेंट करो और हर बारी एक नया सेक्सी आउटफिट ले लो Say, awesome. Very good thought. Buy the basics and rent the iconic. आइकॉनिक Awesome. There was this Forbes article which says कि global fashion rental market जो है वो $6 billion से ज़्यादा का है. मुझे ये समझना है कि where India is heading when it comes to fashion rental. What is happening in India? How big the market is, and what is the consumer perception about this market? Got it. So, I had appeared on Shark Tank. I 2 remember years we, ago, we okay. have a segment where we Okay, talk okay. about No, but it. the point is that from that day till today, a lot of rental stores have opened. Uh-huh. And it makes my heart very happy. So, मतलब mom and pop rental stores खुल रहे हैं और उससे पहले भी थे. So, ये पूरा space जो है ना अभी unorganized है. Majorly. And very barring a few players. I think we are leading this space to be an organized player in this space. But unorganized player space बहुत बड़ा है. And as against probably जो 10 साल पहले stores थे, the quality of stores, that has gone up. Quality, even mom and pop stores में भी ना rental stores की quality, product quality and मतलब rental store का quality, product quality and kind of garments. Okay. ऐसे भी stores हैं mom and pop जो 25, 30, 50 हज़ार का rental पे दे रहे हैं product. Oh, People are taking it. Yes. that's insane. So the whole space right now mostly is unorganized. All right. So basically, abhi, will we see this exploding in near future more? Like, 120%, yes. Yes. and what is consumers' perception about it? How people think about renting a thing? Okay. As of now, I have not rented anything. Okay. When it comes to clothes or I'll make dresses. sure you do. Next occasion that you go out, you have to wear a flyer over. Hopefully. So I'll tell you. So this is mindset change. तो आप एकदम से ना पलट नहीं, आप नहीं सोचते दुनिया पलट जाएगी आपके लिए. आपने कुछ बहुत अच्छा दिया तो सब लोग यूज करेंगे, ऐसा नहीं होता है. ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है. ईयर ऑन ईयर हमें कैटेगरी ग्रोथ दिखती है. So Okay. for example, and as a brand, we've done a lot to understand the consumer psyche and provide a product that fits that psyche उस टाइम पर. Okay. So for Can you give me- example, हाँ. I'll tell you. So for example, what we did initially, हमने जब stores खोले, stores से तो सबसे पहले look and feel. People can see the designer. Work ना, अगर example मैं आपको बता रही हूँ, एक लहंगा है जिसका weight है say 20 kgs versus एक लहंगा है जिसका weight है 1 kg. जब उसकी फोटो आती है ना वेबसाइट पे, दोनों सेम लगते हैं. तो जब तक उसका हैंडवर्क कोई छुएगा नहीं, उसको उठाएगा नहीं, you can't understand the feel of a product. Right. So opening stores was the biggest game changer for us. Secondly, what we did, we were facing questions हैं कि हमें fresh पहनना है, नया पहनना है, मेरा शादी का दिन है and all of that. Okay. So उसके लिए हमने क्या किया, हमने पहले ना एक prime section बना दिया था. Flyro Prime was a section in every store, which meant कि ये pieces brand new है, unstitched pieces हैं. Okay. अगर एक पीस एग्जाम्पल रेंट पे 10 रुपए का है, अगर आप प्राइम सेक्शन से उठा रहे हैं तो आप प्रीमियम दे रहे हैं, इसका 15 रुपए रेंट दे रहे हैं, बट यू विल बी द फर्स्ट वन टू वेयर इट. ब्रांड न्यू प्रोडक्ट. सो वी स्टार्टेड बाय दिस. देयर वर टेकर्स, बट ओवर ईयर्स ना वो कम हो गया. पीपल सेड कि नहीं देना 15, हम 10 देंगे, हमें यही दे दो. अच्छा, मुझे यूज किया या श्योर. एंड देन क्या सारी ब्राइड्स हमसे रेंट कर रही हैं? क्वेश्चन इज कि सब लोग रेंट, सब ब्राइड्स हमसे रेंट कर रही हैं? आंसर इज नो, सब नहीं कर रहे. कितने कर रहे हैं? ईयर ऑन ईयर वो ग्रोथ दिख रही है. Okay. So when we say we open a new store in a new city, तो हमको पता है कि अभी उसमें 80% वेडिंग गेस्ट रेंटल्स हैं. 80%. एग्जाम्पल, हाँ, जो 80%. स्टोर्स में लोग आ रहे हैं 80% इज वेडिंग गेस्ट रेंटल्स. रेवेन्यू वाइज नहीं, हमारा मोटा मोटा 70% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम वेडिंग गेस्ट एंड अबाउट 30% रेवेन्यू कम्स फ्रॉम ब्राइडल रेंटिंग फ्रॉम विमेन सेक्शन. Okay. Men में 50% revenue comes from groom renting, शेरवानी renting, and बाकी बैलेंस बाकी सब कैटेगरीज 50% पूरा करती हैं.
Okay. This is how the market is. So which means year on year number of brides renting for, when I say bride I mean that her wedding day, like the lal joda she wears for the wedding, that's what I call a bride. But कितने शहरों में ओके फाइन राइट नाउ ब्राइड इज नॉट सेइंग कि नहीं नहीं शादी का जोड़ा में खरीदना है, नो प्रॉब्लम, डोंट वेस्ट मनी ऑन द एंगेजमेंट कॉकटेल रिसेप्शन आउटफिट्स, रेंट दैट. So people are renting that. They're also heavy expensive. अगर आप 2 लाख रुपए अपनी शादी पे के लिए खर्च रहे हो तो आप कम से कम 50,000 1 लाख का तो आगे पीछे के फंक्शंस का भी आउटफिट ले रहे हो, राइट? सो धीरे 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 वी रियलाइज कि हमारा परसेंटेजेस ऑफ ब्राइड रेंटिंग बढ़ रहा है. Got it. Actually, I have this section where I'll talk about Okay. you know where this revenue come from, when or women का, and then Sure. women में क्या bifurcation है. Sure. We will talk about that a lot. So basically, what could I understand this particular conversation is कि जो mindset change है that is happening year on year. The growth is slow, but it will again reach somewhere जहाँ पे लोग people will be very comfortable renting their dresses, right? Perfect. Achal, I want to understand this thing first. कि you started is as online first brand, like discovery online हो रही थी, and now you have stores in 30 plus cities. Yes. 21 stores operating, in these cities. Online और offline buying behavior क्या होता है user का, और renting behavior I should say. So see अभी क्या है, डिस्कवरी अभी भी ऑनलाइन हो रही है. So you know how we moved from standard retail stores, like our stores are not on ground floor big retail like that, we are probably on an upper floor. Okay. हमको जगह ज़्यादा चाहिए. You'll see like a 300-2,000 square feet store, but हम हो सकता है फर्स्ट फ्लोर पर हो, सेकंड फ्लोर पर हो, किसी भी मेन मार्केट के आसपास हो, because people discover us online. Right. They completely discover us online and then they come to the store. So now completely जो ऑनलाइन ले रहे हैं वो कौन सी जनता है, वो NRIs है जिनकी शादी इंडिया में होनी है कुछ महीनों बाद, बट दे कांट कम एंड ट्रैवल, सो दे विल पिक एंड चूज ऑनलाइन. दे माइट वांट टू टॉक टू द स्टोर वंस जहाँ पे प्रोडक्ट है, दे डू अ वीडियो कॉल एंड दे पिक अप देयर सब्या वब्या जो भी उन लोग को चाहिए अपने शादी के लिए ऑनलाइन. देन वेडिंग गेस्ट कैटेगरीज, आई हैव टू अटेंड समबडीज वेडिंग, आई विल जस्ट बुक ऑनलाइन, आई डोंट वांट टू मेक दैट एफर्ट ऑफ गोइंग टू द स्टोर. अब मेरा ब्रैकेट क्या है वो वाला, between 3,000 to 4,000, 3,000-4,000 rupees online. Now it's a special day, मेरा खुद का फंक्शन है या मेरे भाई की शादी है, मेरी बेस्ट फ्रेंड की वेडिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, then that time you want to go to the store, the whole family comes to the store. And with stores we realized, Jamil, that even elders are renting, जो हमें ऑनलाइन मिलती नहीं थी जनता. Okay. So what happens now, when the bride and the groom are coming, now mama wants to wear a gown and then the girl says कि yeah, you should wear. So आजकल का concept क्या है, see older time पे a youngster would tell the mama no, why will you wear this, you wear your suit only. But आजकल क्या है, ये YOLO वाला life concept है, मम्मा को गाउन पहनना है तो मम्मा should wear a gown. So you know then that time. And फिर क्योंकि अब wedding festivities भी बहुत elaborate हो गए हैं, so there's a carnival theme, there's a floral theme, and now the daughter wants कि papa you have to wear a yellow color this thing for my haldi, and papa doesn't want to buy the yellow one. And then that rental model comes in handy. Awesome. So basically, things are changing very quickly, and more or less जो online buyers हैं, those are NRI people as you said, and जहाँ पे वैसे function है which involves the family, which is very important to you or the bride जो भी है, they come to your store and then they buy it, right? अभी revenue split कैसा है online offline का? How is that? So online ना हमने as a brand honestly last 3 years we've been growing profitably organically. So हमारे पास कुछ ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर फंड्स थे ही नहीं, हमने खुद ही ग्रो करा है बिजनेस को. So we online माने burning a little. Okay. So it's completely organic, 10%. 10%. 90% is offline because effort नहीं कर रहे हम ऑनलाइन पे. जो ऑर्गेनिकली ग्रो हो रहा है वो हो रहा है. पर ऑनलाइन राइट नाउ डिस्कवरी के लिए ज्यादा चूज हो पा रहा है, लाइक डिस्कवर ऑनलाइन एंड कम टू द स्टोर, एंड दैट्स द आइडिया कि हमने इतने स्टोर एक्सपेंड कर लिए हैं. Right. एंड प्लस ऑल्सो आई थिंक एज अ यूजर एक्सपीरियंस, if somebody is renting for the first time, offline is a better experience. क्योंकि फिटिंग्स हैं, मेजरमेंट्स हैं, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पूरा कस्टमर एक्सपीरियंस का. अग्री ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी आप ऐसे ड्रेसेस बाय कर रहे हैं या रेंट करने की बात करते हैं कि मेरे को पहन के देखना है कि हाउ डज इट लुक ऑन मी, मेरे को फिट आ रहा है नहीं आ रहा है ना. ट्रू. राइट. ऑल्सो आई मीन सिंस यू मेंशन कि जो मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यू है दैट कम्स फ्रॉम वेडिंग और ऐसे पार्टीज जहाँ पे लोग इस तरह के ड्रेसेस पहन रहे हैं, how does the business look like over the like in the entire year? Okay. कि पूरे साल में बिजनेस कहाँ पे ज्यादा आ रहा है, So कहाँ we पे are कम आ रहा है? completely wedding focused, occasion wear category. ठीक है. हम लोग से bride and anything and everything that you wear to a wedding, bride groom or as wedding guest, pre-wedding photo shoots included. ये हमारा major category है. Consumer direct to consumer है, and then there's a B2B category where
makeup artists, for shoots, for photo shoots, and for all of that Acha. we send clothes. And then there's also a little foreign clients category, not the ones who are coming to attend a wedding. Okay. They just come to wear an outfit just for the experience of it. Okay. So all of that is a different category, which is not wedding related. Like for example, जब हम छोटे थे, remember we used to go to Rajasthan and dress up like that. So that kind. Okay. When foreigners want to come to India and dress up in full Indian for pictures and for the feel of it. Uh-huh. But broadly, it's wedding. So हमारा season रहता है August till April. August till April. April. So you don't think about when the weddings are happening. Okay. Anybody who's getting married Uh-huh. books the outfit at least 2-3 months in advance. So then we start functioning in August and we are relevant till April. And across geographies, peaks अलग-अलग हैं. Like जैसे कि- North will peak in October, November. ठीक है. South will peak in say May, June. May, June peaks in South. अच्छा South. Bangalore is peaking in May. Oh. Maximum number of weddings happen in Bangalore. Okay, so South. ultimately, if I could, if I'm getting it right, the business is happening across the year, But you can still broadly say August to April. April, or Yeah. rest of the month there is. That May, June, July is slump for us, where we work on B2B, photo shoots and all of that, and prep for the season. Okay. But if you look at any retail business, सबका ही same logic रहता है. हर retail space में यही months है. All right, understood. So, any plan कि maybe a category or something that will make your business कि पूरे साल ही चल रहा हो, या कुछ ऐसे categories include कर सकते हैं, or anything like that? So see, I think product fit wise तो ये basic major categories हैं. And अगर हम अगस्त से अप्रैल भी अच्छा काम कर रहे हैं तो वो 3 months का जो थोड़ा slump है, that's okay. It That's doesn't over. bother the P&Ls. अच्छा, That's absolutely okay. But otherwise, if you ask me कि what are the categories, I feel like when we were renting Westerns, the Western का ticket size कम था. अब Western buying का ticket size भी high है. So what personally I feel next 2 years we should really think of having vacation rentals. Vacation rentals. Yes, like what Okay. you wear for सब cities के लिए नहीं होगा वो, maybe metropolitan or whatever. Do an online stuff where you are renting for vacations. Because that kind of clothes you never wear back when wear in the city when you come back. Right, only on vacations, right? Perfect. Also, आंचल मुझे ये समझाओ आप कि जब आप कहते हो कि यू आर हैविंग रिपीट कस्टमर्स, और लेट्स से यू आर सेइंग कि लॉयल कस्टमर्स, व्हाट काइंड ऑफ कस्टमर पर्सोना यू ऑब्जर्व कि इस तरीके के लोग वापस आ रहे हैं, या इस तरीके के लोग, मे बी इट कुड बी जेन ज़ी और मिलेनियल्स, इट कुड बी समथिंग एल्स, एनीथिंग एल्स, बट व्हाट डू यू ऑब्जर्व? So see, of course, we don't even want the brides and grooms to come back for their main wedding. Obviously. That would be very sad. So bride and groom obviously one time customer रहते हैं. But see, I'll tell you, age group wise ना 20 to 35, वो 35 भी अब 40 चला गया actually. हाँ, so 20 to 40 is our TG. That is when maximum number of occasions are happening in your life. आपकी खुद की शादी हो रही है, आपके भाई बहनों की शादी, friends are getting married, and then you're having a first kid, उसका कुछ function है. So that is the टारगेट हमारा, वो कस्टमर हमारे तब से लेके तब तक आ रहे हैं. सो वेडिंग गेस्ट कैटेगरी हमारा रिपीट चलता है. वन कस्टमर कम्स टू अस 3 times ओवर अ स्पैन ऑफ 2 years कि ये हमारा रिपीट है अभी. बट ऑल्सो आई थिंक ये मैट्रिक्स ना बहुत अच्छा नहीं है हमारे बिजनेस के लिए. रीजन बीइंग कि फ्रेश कस्टमर हमेशा ज्यादा होगा. Okay. Because mindset change हो रहा है. Buyers are getting converted into renters. Right? If we are not like a standard store की, for example आप denims बेच रहे हो तो आपको पता है ये denims है, इतने लोग इतने ही ले रहे हैं, year on year बस इतना सा increase हो रहा है. But here buyers are getting converted to renters. So मतलब year on year नया customer बहुत ज्यादा आ रहा है. First time trials. So basically you are saying कि in this space repeat rate is very low, क्योंकि वो वापस, क्योंकि आप वेडिंग वाले सीजन में ऑपरेट कर रहे हो, एंड यूजुअली वैसे ड्रेसेस हैं जो लोग एक बार ही पहनते हैं, और नए कस्टमर्स ज्यादा आ रहे हैं हर साल. नए कस्टमर ज्यादा रिपीट आ रहा है. रिपीट वेडिंग गेस्ट कैटेगरी में आ रहा है और फेयरली सो आ रहा है. सो एक बार में भी पीपल आर टेकिंग मल्टीपल आउटफिट्स. अब सी हैव टू गो टू अ वेडिंग. अब वेडिंग मतलब 3 events. सो एटलीस्ट आई एम टेकिंग 2 on rent. एक मैं पुराना कुछ पहन रही हूँ अपना, एक ऐसा इवेंट है कि मुझे इतना हैवी नहीं पहनना है. सो 3 में से 2 आई एम टेकिंग ऑन रेंट. तो एक बास्केट साइज भी बड़ा हो रहा है हम लोग का. Understood. So अभी what is the average I should say AOV, average order value or something? How is that? Pan India 5500 offline, but geographies wise changing. Like can you give me an example? Yeah, like a north, like a see a Punjab or Delhi, West Delhi store.
or a Punjab store does about 8,000 average. 8,000. Yeah. So basically north में it is higher. North में some locations are higher. Some Uh-huh. locations are higher. Uh, And so, but across categories, average 5,500. And online has been about 3,200 for us. awesome. Flyrobe operates in two model that I could understand. अगर मैं गलत हूँ तो you can correct me. First one, you own some clothes and then you rent it. Then there are people who rent their clothes through your platform. Am I right? Correct. Okay. How do you balance this two segment कि एक तो आपका है और एक किसी से लेके आप रेंट कर रहे हो? Is it? Yes. है ना? Yes. तो पहले तो ये बताओ कैसे बैलेंस करते हो इन दोनों को? व्हाट इज कंट्रीब्यूशन यहाँ पे एंड विच वन इज मोर प्रॉफिटेबल? Okay. हाँ, So, ये भी हमने सस्टेनेबिलिटी नैरेटिव को बढ़ाने के लिए शुरू किया. ठीक So है. earlier ना we had a marketplace model where designers were on board. ओके. Designers अपने कपड़े हमको देते थे and we है. used to rent it out and share rentals with them. ओके. It's a variable cost for the business. हम्म. Then we realized कि हम या हम अपने और garments ले रहे हैं. Then we realized कि why not pick up from closets. लोगों के closets भरे हुए हैं, उसको निकालो and let's put it to use circular economy point of view से. And we started to do that. So now the logic is all the high end and the super expensive stuff, the designer, the luxury comes from that model. We call it Right. C2C. हम्म. A customer would give a product and we rent it out. उसका एक डैशबोर्ड क्रिएट हो जाता है. अगेन टेक्नोलॉजी हेल्प्स अस मेंटेन ट्रांसपेरेंसी. तो उसको हर महीने जब भी जितना भी रेंट हुआ मंथ ऑन मंथ उसको पैसे मिल जाते हैं. और ऑल्सो सैल्वेज वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है इधर. मतलब उधर डिजाइनर के लिए वो बिजनेस एसेट था, राइट. तो वो हमको दे रहा है. वी आर फाइटिंग फॉर मार्जिन्स. हियर यूजर के लिए वो वेस्ट एसेट है. यस, एंड प्लस शी इज गॉट इट फॉर वेरी एक्सपेंसिव, बट उसको कोई वैल्यू नहीं है अभी. प्री लव्ड इंडिया में प्री लव्ड एथनिक सेलिंग बहुत बड़ा नहीं है और होगा भी नहीं, बिकॉज कंपनी लाइक आर्स विल नॉट लेट दैट स्पेस ग्रो. आप 1 लाख का लहंगा 50,000 में क्यों खरीदोगे जब मैं आपको 10,000 में रेंट पे दे रही हूँ, राइट? सो देन एंड ये उसको मोनेटाइज करने का अच्छा तरीका है. बट बिजनेस वाइज अगर हम सारा प्रोडक्ट C2C डाल देंगे बिजनेस में, इट विल नेवर वर्क. बिकॉज हम भी बहुत ट्रेंड्स पे खेलते हैं. सी टुडे यू आर रेंटिंग और बाइंग, आपको चाहिए तो लेटेस्ट फैशन ना, सो वो इनबाउंड करना. वी हैव अ लार्जर चंक. 80% इज ओन इन्वेंटरी फॉर अस. 80% is own inventory. 20% is luxurious C2C inventory, where it is expensive, the asset is very expensive, there's a brand tag involved and all of that. 80% is sometimes get it manufactured as per designs, as per latest trends, like any fashion business would do. That's how we work. बट जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि अगर लग्जूरियस प्रोडक्ट है कोई भी, लेट्स से मैं 1.5 लाख का आई हैव अ सूट फॉर एग्जांपल एंड आई हैव वॉर इट, मैं हो गया और मेरे क्लोसेट में पड़ा हुआ है वो, डू यू रियली थिंक आई वुड लाइक टू लाइक रेंट इट टू समवन एल्स? क्योंकि मैं तो बिल्कुल शिद्दत से खरीदूंगा ना उसको. वाई like do we have customers, do we have people who rent their clothes? Sure. So one thing is we don't do men's here, we just do women's. We don't take men's products here because sizing is very non-standard in terms of men customized products. So we only do women. And इधर क्या होता है, now you think about women. उसने एक 2 लाख का लहंगा खरीदा, उसने पहना अपना एक ओकेजन में, and उसके बाद she is not wearing it ever. So she wants to monetize that money. So and in terms of giving you numbers, as on date we have more than 8,000 plus people who have rented their products via Flyrobe. 8,000. Yes, 8,000. Okay. So basically what I could understand from here is there is a girl who has bought let's say for example 2 lakhs of lehenga or any dress. उन्होंने उसको पहन लिया, यूज़ कर लिया, एंड नाउ शी इज़ रेंटिंग इट थ्रू योर प्लेटफॉर्म. हेल्प मी अंडरस्टैंड हाउ मच मनी इज शी मेकिंग? She makes 30% of the rent. So what we say, एक रेंट अमाउंट होगा, 40% हमारा लॉजिस्टिक्स और ये सब कवर होता है कॉस्ट. लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 2 लाख का प्रोडक्ट था, 2 लाख की ड्रेस थी. अब इसमें मुझे बाइफरकेट करके आप समझा दो कि हाउ मच मनी शी विल बी मेकिंग. अब 2 लाख की ड्रेस थी तो उसका रेंट वुड बी एनीवेयर बिटवीन 10 to 25% ऑफ 2 लाख. ओके, सो डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट, सब कुछ बहुत वेरिएबल. आप एग्जांपल ले लो, 30,000 ले लेते हैं, 30,000 का उसका रेंट है. तो इसमें से हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा इज 40%. ठीक है. फिर जो बाकी मार्जिन है 50-50 शेयर करते हैं हम लोग, विच मीन्स 30,000 का एवरी टाइम इट रेंट्स आउट 10,000 गोज टू हर एवरी टाइम. सो एवरी टाइम दैट ड्रेस कोई रेंट करता है तो यूजर को जिसका वो ड्रेस है 10,000 रुपीज उसके अकाउंट में जाता है.
So Awesome. even if you're renting this product say for 10 times, she's making about 1 lakh of rupees. Right. Interesting. Acha, Achal, I saw this. I mean, I don't know if you remember this. We had this Zepto और Shaadi.com का एक collaboration. There was this banner going viral कि वर चाहिए तो Shaadi.com मान्य वर चाहिए तो Zepto करके ऐसे एक बैनर वायरल हुई थी अभी थोड़े टाइम पहले. Do we see fashion rental thing going quick commerce? फॉर एग्जाम्पल मेरे को ना Yeah. अभी एक दोस्त की शादी थी बट आई वाज नॉट प्लानिंग टू गो और सडनली इसका कॉल आता है या फिर मेरा चेंज ऑफ प्लान है कि मुझे जाना है अभी शादी में एंड आई डोंट हैव समथिंग टू वेयर शुड आई लाइक कैन आई जस्ट रेंट इट फ्रॉम फ्लाईओवर वो मुझे 1-1.5 घंटे में या आधे घंटे में आ जाएगा. इज इट पॉसिबल? सो यूर राइट, ऐसा हुआ है एंड आपने अपना एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है बिकॉज हमारे पास हम इसको T0 ऑर्डर्स बोलते हैं. जब कस्टमर उसी दिन आ रहा है उसी स्टोर दिन, पर और बोल रहे हैं अभी चाहिए शादी पे अभी जाना है और अभी पहनना है, हाँ. तो वो सब आदमी है लेकिन विच इज ट्रू. So- लाइक वेडिंग गेस्ट कैटेगरी एंड मेन कि भाई आज ही दे दो अभी दे दो, पहन के वहीं से निकल रहे हैं शादी में. सो येस, एज अ सर्विस प्रोवाइडर हम वो प्रोवाइड कर सकते हैं. हमारे स्टोर पे अगर आप जाएंगे आपको बोलेंगे अभी चाहिए 1 घंटे आधे घंटे में चूज करो पहन के जाओ, यू कैन So- डू दैट. so it सो वी is- आर फास्ट. Okay. But if you ask me, should we be on a quick commerce? हाँ. Maybe yes. Uh-huh. Certain categories, certain months of the year, Mm-hmm. sure yes. So abhi it is not on quick commerce, but in future maybe. Can be, but it'll be like limited to only Okay. certain months of the year. Depends on which city we are in. Because usually आप शादी के लिए इतनी तैयारी तो कर ही लेते हैं कि आप एक मार्केट तक चले जाते हैं. So मतलब this is Yeah, and women book in advance. Like Right. even sometimes it's just 3 days in advance, 4 days in advance कि आपको पता लगा weekend में जाना है मुझे, then come to the store and book. But even if they want to take it right away, we give it. Okay, so for men we can just go to the store and rent For it women on the also same you can. day. Okay. Any customer can go to the store, immediately wait for 20-30 minutes, we fix the product and give it to you. Oh. Any customer, but use case हमारा men में ज्यादा है अभी तक. So same day booking is available at Yeah, store. yeah. Same but day, pick online it up right takes away. some time, है ना? So online also depends on which city you're in. Some cities can provide you same day delivery as well. अच्छा. And what are the cities, for example, if you? So it depends on the product where it is. So sometimes if you want a product and you're in any of the cities, आप हमारे store हम same day delivery दे देंगे. Okay, awesome. Very interesting. Also, I mean, एक चीज़ और मुझे समझने की कोशिश कर रहा था मैं कल when I was reading about you कि when it comes to fashion rental thing, logistics काफ़ी complex है इसकी. Why I say this is कि let me see क्योंकि कैसा है कि let's say मैंने कुछ रेंट किया आपके पास से, I rented it, आपने I ordered it, आपने उसको पैक वैक किया एंड डिलीवर किया मेरे पास, मैंने उसको पहना एंड देन यू केम टू पिक इट अप. अब वो वापस से क्लीनिंग के लिए जाएगा, ड्राई क्लीन होगा एंड एवरीथिंग, और फिर से वो पैक वैक होकर रेडी होगा एंड देन वापस से ये पूरा प्रोसेस होगा. How do you handle that? What is the current logistics or supply chain looks like? Okay. So I'll break this up into 2 parts. ठीक है. One is back end cleaning of a garment ठीक है. and garment prep, and one is logistics. Like हम भेज रहे हैं, ला रहे हैं and all of that. So logistics 10 years ago was super challenging for us. Yes. मतलब वो एक see for us it's not a t-shirt कि आज नहीं आया 2 दिन बाद आया हो गया, उसकी शादी है तो garment has to reach in time. So back end we obviously initially we faced a lot of backlash कि हमारे को product ही नहीं टाइम पे पहुंच रहा था, हमने अपने टाइम से निकाला. Then back end में हमने pseudo delivery dates कर दिए वेयर हाउस के लिए. ठीक है. Like अगर हम ऑनलाइन डिलीवर कर रहे हैं विद वेडिंग एथनिक आउटफिट तो वो सूडो डिलीवरी डेट के हिसाब से कस्टमर के पास 2 दिन पहले पहुंच रहा है. Okay. दैट्स हाउ वी वर्कड. बट टुडे लॉजिस्टिक्स इज प्रीटी मच स्ट्रीमलाइन. अगर हमको पता है आज सुबह निकालेंगे कल बॉम्बे शाम तक पहुंच जाएगा. बहुत स्ट्रीमलाइन हो गया है लॉजिस्टिक्स. सो दिस इज वन पार्ट ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग. ठीक है. एंड मोर सो विद स्टोर्स पीपल लाइक टू गो टू द स्टोर. हम भी चाहते हैं अगर आपने स्टोर ऑर्डर करा है एंड इफ यू आर इन द सेम सिटी कम टू द स्टोर. इफ इट्स एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ट्राई द आउटफिट. मेजरमेंट हम आपका लेके फिट करके रखते हैं. यू ट्राई द फिटिंग, लास्ट मिनट ऑल्टरेशंस विल स्टिल डू इट फॉर यू एंड यू टेक द प्रोडक्ट विद यू. That's what. Now you talk about garment prep. So of course initially challenging, मतलब वो कौन सा laundry partner, कितना time, all of that. But that's what we expert in now. वो सब हमने streamline कर दिया है कि एक गारमेंट का बैक एंड प्रोसेस क्या होता है. आपने स्टोर से बुक करा फॉर एग्जाम्पल एंड अब आपका डिलीवरी डेट है. उससे पहले वो क्लीनिंग के लिए जा रहा है, रिपेयर के लिए जा रहा है, आपका फिटिंग हो रहा है एंड इट्स रेडी फॉर यू टू पिक इट अप. व्हेन यू कम एंड रिटर्न द प्रोडक्ट तब वो अगेन सेम प्रोसेस है. हम हैवी वर्क्स पे काम करते हैं तो एम्बेलिशमेंट्स को वापस से रिपेयर करना. सो द आइडिया इज कि product should be new like. Unless and until it's not new like, it's not in the store, it's not going to a customer. So back end heavy है process.
Right. बट वो टेक से हमने स्ट्रीमलाइन कर दिया है. What is the like biggest operational nightmare कि यार ये हो गया इस प्रोडक्ट के साथ और ऐसा कुछ? बहुत कम केसेस है. लाइक व्हेन आई टॉक अबाउट डैमेज, कितना पूछते लोग कितना डैमेज रेशियो परसेंटेज है. सो यूजुअली बहुत कम है. लाइक इफ यू लुक एट आस, लाइक व्हेन वी वेयर हैवी आउटफिट्स वी आर केयरफुल. हम वी डोंट रियली खराब नहीं कर देते उसको. कस्टमर से तो हम सिक्योरिटी डिपॉजिट लेके रखते हैं. Okay. सो वी चार्ज रेंट प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट. And what is how like कितना security deposit होता है? ऑलमोस्ट इक्वल टू द रेंट, Equal नॉट to the इक्वल rent. टू द हाँ, एमआरपी. rent, अगर वो हाँ. 2 लाख का चीज है हम्म, तो अगर उसका रेंट से 30,000 है तो उसका सिक्योरिटी डिपॉजिट भी 30,000 ही होगा. Okay. इक्वल टू Understood. द रेंट. बट कंप्लीट डैमेज रेशियो मतलब ऐसे बहुत ही अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस में हुआ है कि एक आउटफिट जल ही गया जल गया. क्योंकि वो गाड़ी जल गई उनकी. वो ट्रैवल करके आए थे तो गाड़ी जल गई, लोग बाहर निकले एंड आउटफिट गॉट बर्न्ड. Basically सो accident. ऐसे कुछ बहुत ही मेजर कुछ होता है तो हाँ. ऐसा होता है विच इज रियली लो. क्या हो सकता है मैक्सिमम आउटफिट को? कुछ नहीं ज्यादा हो सकता. नॉर्मल वेयर एंड टेयर अलाउड है. आप डांस कर रहे हो, आपको थोड़ा बहुत वाइन गिर गया, लिटिल बिट ऑफ स्टेन्स, दैट्स अलाउड वेयर एंड टेयर. वी आर देयर टू क्लीन इट अप, राइट? बट कंप्लीट डैमेज हार्डली एनी. Okay. एंड इनफैक्ट इवन पीपल रनिंग अवे विद आउटफिट्स इज ऑल्सो हार्डली एनी. क्योंकि काम तो हो गया ना, उन्होंने एक बार पहनना था, दैट्स डन. दे वांट द मनी बैक. Deposit तो चाहिए वापस. यस, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी उनके लिए. अभी ओवरऑल कितने कस्टमर्स को सर्व कर चुके हो आप लोग या कर रहे हो? हम आई बिल्कुल. थिंक अभी तक आज तक इन आवर लाइफ टाइम मोर देन 2 lakh More than 2 lakh customers has been served. have been served. Yes. Great. Awesome. You are operating अभी 2 तरीके से. एक फ्लैगशिप स्टोर है आपके, दूसरे फ्रेंचाइजी स्टोर है, राइट? विच वन इज मोर प्रॉफिटेबल, प्लस कैसे बिजनेस आ रहा है यहाँ से फ्रेंचाइजी से, और कैसा बिजनेस आ रहा है फ्लैगशिप से? So it's about duration of the store. चाहे वो फ्लैगशिप हो चाहे वो फ्रेंचाइज हो, जितना Sure. पुराना स्टोर है उतना प्रॉफिट बढ़ रहा है उसका. हाँ. प्लस ईयर ऑन ईयर ग्रोथ बढ़ रही है. हाँ. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 3 साल पहले अगर ईयर ऑन ईयर ग्रोथ थी से 20%, 10%, तो वो आज 30-40% है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ. ओके. बिकॉज नंबर ऑफ पीपल रेंटिंग आर गोइंग अप. हाँ. सो नेट आई टेल यू आवर यूजर बेस हैज चेंज्ड. हाँ. 10 साल पहले जो कस्टमर था जो आज है वो अलग अलग टाइप है. 10 years ago my friends were not renting from me. बोलते थे बहुत अच्छा काम है, वेरी सस्टेनेबल एंड ऑल ऑफ दैट, बट दे वर नॉट माई कस्टमर्स ऑनेस्टली. 10 साल पहले जो कंज्यूमर था ना वो खाली पैसे की वजह से रेंट कर रहा था. दे डिडंट हैव मनी, सो दे वर ऑप्टिंग टू रेंट इंस्टेड ऑफ बाय. बट आज की डेट पे जो कंज्यूमर है ना, दे आर द यंगस्टर्स, जेनजीज, मिलेनियल्स. पैसे हैं, दे विल हैव 50,000 rupees to go burn in a beer bar. They will have the money to travel. They will have all of that. But by choice they are renting क्योंकि उनको इस सेगमेंट में इन्वेस्ट नहीं करना है. ओके. So the customer has changed सो basically. अभी इट हैज बिकम कि मेरे पास पैसे तो हैं, बट आई डोंट वांट टू बाय एंड पुट माय मनी देयर क्योंकि वो स्टक हो जाएगा. Anyway, I'm not going to use that again. Exactly. So instead of that, I'll go and rent it and save some money. Exactly. So it's not the financial reason that you're coming to rent. But That's a choice that you're making. हाँ, मतलब हाँ, आपका कंपल्शन नहीं है कि मैं ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास. But you think it's not wise. right. And see, when you think about the youngsters, उनका वे ऑफ थिंकिंग वेरी प्रैक्टिकल. उनका पैसा कहाँ जा रहा है? वेकेशन पे जा रहा है, एक्सपीरियंस पे जा रहा है, ट्रैवल बहुत कर रहे हैं, इक्विटी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं. बट बहुत सब चीज़ों में इट्स क्लियरली अ नो, लाइक नहीं पैसा खर्चा तो नहीं करना. इट्स नॉट लाइक वो वाला टैबू नहीं कि खरीदेंगे ही खरीदेंगे, वो लॉजिक नहीं है. यू लुक एट गोल्ड ऑल्सो, द न्यू एज ब्रांड्स आर गोइंग अप. मिया, तनिष्क का जो कैरेटलीन, कितने सब छोटे वाले ब्रांड्स आ गए. पीपल आर नॉट बाइंग दोज बिग सेट्स एनीमोर, दे वांट टू बाय स्मॉल ज्वेलरी. Awesome. I guess that's very much what's happening today, Yeah. right? And even in the shared space, you look at co-working offices going up, furniture rental happening, cabs. कितने लोग हैं जो गाड़ी नहीं खरीद रहे अभी कि हमारा कैब से हो जाता है, हमें नहीं चाहिए गाड़ी. Like so many things are changing, right? Right. Awesome. So now help me understand, Achal, कि अभी since you have already served 2 lakhs plus customer, 30 cities touch कर लिया आपने, 21 outlets हैं आपके, stores हैं आपके. From here onwards, what is the growth strategy that you have in mind कि अभी Flyroop आगे कैसे जा रहा होगा? What are the segment or city or anything else that you are planning to expand into? Okay, so it's not like हम खाली metros में store खोल रहे हैं. ठीक है. Like a Raipur store did phenomenally well for us. Raipur. Yeah, did a phenomenally well, gave good results. Reason being कि Raipur people have that hunger for designers and availability नहीं है, right? So I feel across. So is it something about the city
or do you see like I think Raipur would come into a tier 2 city. Yeah, Am I yeah, correct? yeah, yeah. Right? So is it something special about this city or सारे tier 2 cities में you are seeing? सारे टियर 2 सिटीज में डिमांड दिख रही है. Okay. बिकॉज आई टेल यू, पहले क्या होता था टियर 2 सिटीज में, यार जो भी ये वाले सिटीज में क्या है, व्हाट्स द फैशन ऑप्शन दैट यू हैव, यू जस्ट गो टू द नियर बाय मार्केट. उसमें जो भी एक रिटेलर है लार्ज, आप उसका कलेक्शन देखोगे एंड देन यू चीज, अच्छा ये नया होगा. ये नॉलेज था खाली. ठीक है. बट बिकॉज ऑफ दिस complete awareness of social media, every girl or a boy in this city knows what the latest fashion is, what Alia Bhatt is wearing, what Virat Kohli wore, what Ranveer Singh wore for his wedding, etc. etc. तो awareness तो है, provide करना है उनको. So as a brand, when we are able to get designers latest fashion to that city, that too on rent, it's a big win-win. But don't you think कि tier 2 cities में लोगों के paying potential कम होते हैं, वहाँ पे Not वैसे anymore. कपड़े लोग रेंट. Not anymore. Then it comes to wedding budgets तो है ही ना सबके. बट अगेन मतलब टियर 1 सिटी और टियर 2 सिटी में बजट का भी तो डिफरेंस आ जाता होगा ना. तो वहाँ पे इज देयर सर लाइक कि कुछ स्पेसिफिक ड्रेसेस या कुछ वो रेंट हो रहे हो और जो टियर 1 सिटी में रेंट हो रहे हैं वो वहाँ पे नहीं रेंट हो रहे हैं. सो श्योर, अगर मैं आपको बोलूँ कि बहुत हाई एंड कपड़े क्या टियर 2 हर सिटी में जा रहे हैं, नो, फॉर श्योर नो. बट परसेंटेज कम है, बट एस्पिरेशन है. ओके. बट कुछ सिटीज में, रायपुर में तो लाइक वी डिड नॉट एक्सपेक्ट लाइक इतना लग्जरी का भी डिमांड होगा वहां से, बट है. सो एवरी सिटी वर्क्स इन अ वेरी डिफरेंट मैनर एंड वी आर सर्विसिंग टू सिटी वाइज. एंड दो आई फील broadly over last 3 years, fashion aspiration has become similar to what everybody is wearing, even if it's down south, जो usually साड़ीज पहनते हैं अपने शादी में, but अपने वो पहले wedding celebratory dinner में या reception पे उनको लहंगा पहनना है, because that's what the trend is, right? तो 70-80% is literally the trend, and then there is 20% which is city focused. So Abhi, from growth perspective, you are getting into tier 2 cities, trying to penetrate that. Any product category that you are planning to explore? So product category same ही है हमारे, men, women, exactly what we do, focused on wedding. The idea is to do about 100 stores in the next 2 to 3 years. 100 stores? Yes. Awesome. Pan India. And I do aspire to be opening international stores also. Okay. But India is a huge market. It's a huge market. And honestly, जो मेरी list थी ना potential fly rope stores की, almost 2 साल पहले I was at a 50 and now it's at 120. So I feel by year 5 it's a 500 story. Awesome. I hope this happens. Achal, when we were talking, Abhi, we were just talking about कि operationally how do you handle it, कितना complex है या how आपने कैसे उसको segregate कर रखा है, you know. Again, the question comes is ki as a company, and now you are planning to get into like 100 plus stores in next couple of years. When it comes to expansion, do you think from quality perspective or quality control perspective कि यार let's say अगर मैं multiple cities में जा रही हूँ ना, तो मेरे को ये challenges आने वाले हैं. How do you ensure your quality control while expanding? Okay. So quality is number 1 priority because हमारी audience, again I told you, audience by choice rent कर रहे हैं, by compulsion rent नहीं कर रहे हैं. So अगर हम quality अच्छी नहीं देंगे, they'll move back to buying. And I say as a market leader, as a space leader in this space, I owe this responsibility of giving a good quality product when a person is trying rental for the first time. Right. क्योंकि वो rent दोबारा life में करेगा नहीं करेगा depends on how I service to that person. It's a big responsibility. जैसा पहला experience होगा उसके basis पे ही सामने वाला दोबारा आएगा. Exactly. Right. Exactly. So बाकी of course हर स्टोर पर क्वालिटी कंट्रोल रहता है, चाहे वो फ्रेंचाइज स्टोर हो चाहे हमारा ओन स्टोर हो. इट्स अ कंप्लीट quality control. Yes, in my life we've done more of FOFOs, franchise owned, franchise operated, but this year onwards we will also do more of FOCOs, franchise owned, company operated. Okay. Reason being कि हम एक FOCO को ROI perspective से fast understand कर सकते हैं. If a company operates, आपका स्टोर जल्दी profitable होगा, जल्दी सब कुछ होगा, right? Okay, from franchisee perspective, I just have this one question. Okay, let's say if I want to have a franchisee of Flyrobe, what do I have to do? You have to get in touch with us. Depends on which city you are in. उस city में हम franchise दे रहे हैं अभी कि नहीं दे रहे हैं. ठीक है. And then we have to understand your ideology कि whether you are fit to take a franchise or not. Okay. आप एक young mindset होना चाहिए, आपका business background थोड़ा बहुत होना चाहिए, because हमको कुछ तो आपको समझाना है. If you're a franchise owned, franchise operated store, if you want to operate the store, if you don't want to operate the store, then it's an easy thing. You invest and we operate.
Awesome. And how much investment are we talking about here? This is from, it's a very location specific this thing. Okay, for example, From we are a- in Delhi. uh, I'll give you a broad idea. For a FOFO store where you're operating, it is 30 lakhs to 50 lakhs. Okay. Depends store size कितना है. Store size पे सारी गेम है ये. हाँ. कि छोटा स्टोर छोटा, इन्वेंट्री छोटा, केपेक्स सब कुछ छोटा, थोड़ा बड़ा स्टोर सब कुछ बड़ा. हाँ, 30 to 50 is your this thing. If you're in a very small city, then it's a 20 lakh investment. हाँ. Because वो ROI भी उसी हिसाब से है. हाँ. फिर. आप छोटे सिटी में 50 लाख लगाओगे तो आपका नहीं आएगी रिकवरी. And if it's a completely if you want us to operate, then it's somewhere between 70 lakhs to 1 crore. 20 lakhs to 1 1 crore. crore. And that is obviously for some geographies. Okay. बड़े stores are for some geographies right now. Like बड़े या tier 1 cities के लिए Yeah, जहाँ पे yeah, demand yeah. ज़्यादा है. Yeah. Right. जहाँ पे उतना रेवेन्यू बनेगा अभी. Achal, from all this conversation जो भी हमने अभी तक करी, what I could understand is कि when US started, market में awareness बहुत कम थी. Flyrobe जब 2015 से जो 19 में operate हो रहा था, they tried out a number of things, Western, ethnic, offline stores, and they burn a lot of money. Then again we saw कि there is a lot of stigma around rental things when it comes to dresses. We have this many of challenges कि लोगों का mindset stigma हो गया, hygiene को लेके issue है, burn high है, awareness बहुत कम है. If you have to change one thing about this rental ecosystem that will make Flyrobe 10x जो आज है Flyrobe उससे, what will you change? Somehow get one product delivered to every household. Okay. Just for the feel of it. Uh-huh. Just deliver one product to every household Uh-huh. just to check Uh-huh. the quality and the service. That's all. Okay. And why do you think it will work? Because वो look and feel की बात है. हाँ. आपने see conversions at the stores have been phenomenally good. हाँ. अब अगर रेंटल एज ए स्टिग्मा और ये सब क्वेश्चन है तो कन्वर्जन तो स्टोर पे नहीं होने चाहिए. Hmm. तो मतलब जब स्टोर आके लोग कन्वर्ट हो रहे हैं तो प्रोडक्ट और क्वालिटी पे तो खेल रहे हैं हम लोग. एंड दैट्स व्हाट इज द कन्वर्जन. Hmm. सो इफ यू आस्क मी व्हाट आई हैव टू चेंज, लाइक इफ यू आस्क मी कि मतलब मैं क्या पहले जल्दी करती, तो आई वुड हैव प्रोबब्ली ओपन मोर स्टोर्स फास्टर. Awesome. Awesome. So it's more about, I think, कि once people have the touch and feel, वो mindset shift आएगा. करेक्ट. Great. Now let's talk a little bit about Shark Tank India. You pitched on Shark Tank India season 3. Aman invested 50 lakhs for 4% of equity, right? I want to understand, once the episode was aired, what changed? And वो change जो हुआ उस टाइम पे वो कितने टाइम तक सस्टेन हुआ? ओके. हाँ. सो आई थिंक दो बातें हैं इसमें. एक तो इमीडिएट ट्रैक्शन आता है. And then That is in my- spike we see. Yeah, in my space there has been a long term change which is happening, the shift which is really happening. तो स्पाइक तो इमीडिएटली मिलता है. आपका वेबसाइट ट्रैफिक 10x हो गया है. हम पहले खुद फ्रेंचाइज ढूंढते थे, अभी हम फ्रेंचाइज चूज करते हैं Right. कि वेदर यू आर फिट टू बी ऑपरेटिंग आवर स्टोर और नॉट. एंड देन दैट C2C मॉडल वी आर आउट, वी गेट अ लॉट ऑफ क्वेरीज, बट वी आर पिकी अबाउट व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स वी पिक नाउ. हमारा एक्सेप्टेंस रेट अब 10% हो गया है. Okay. If 100 people want to give us their products, we just accept 10 out of that. So all of that, sure. And mostly क्या हुआ, जब से इस बेसिक में मतलब इस स्पेस में जो अवेयरनेस क्रिएट हुई ना, that's what happened. Like even one of my competitors or a local mom and pop store, I get messages from them also, thanks for airing this, thanks for going on the TV and talking about it. Okay. So माने कि वो स्पेस में there's a huge this thing happening in the last 2 years. नए stores, खाली दिल्ली NCR में number of new rental stores are 36 which have opened in the last 18 months. In 18 months. Mom and pop. So जब ये खुल रहे हैं तो इनके पास business तो है ही definitely. So I'm think it's just not just one my business doing very well या मेरा बहुत अच्छा हो गया, ये पूरा space के लिए अच्छा हुआ है. So I think being on the national TV. Right. So basically for the entire ecosystem, the awareness shoots up कि बहुत ऊपर गया and people. And for the brand, for Flyrobe, ये spike कितने दिन तक रहा? Like So कितने टाइम तक? कुछ स्पाइक था जो हमारा ऑलमोस्ट अ मंथ, वेबसाइट ट्रैफिक 1 महीने तक बहुत क्रेजी था. ठीक है. एंड नंबर ऑफ ऑर्डर्स बिकॉज इट एयर्ड इन मार्च, तो हमारा सीजन ऑफ हो गया था. Ah. सो नंबर ऑफ ऑर्डर्स एकदम से नहीं बढ़े, बट अप्रैल सॉ द स्पाइक. वी स्टार्टेड टू गेट ऑर्डर्स फॉर अप्रैल. फ्रेंचाइज क्वेरीज बढ़ गए, अच्छा. बट ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अच्छा रहा. एज आई मेंशन कि हम लोग 100% से ग्रो हुए हैं उस साल. उसके बाद और फंडिंग रेज की अमन के इन्वेस्ट करने के बाद? अमन से हमने इन्वेस्टमेंट नहीं ली इन द कंपनी.
इन्वेस्टमेंट आपने नहीं ली? इन्वेस्टमेंट नहीं ली हमने Why? बिकॉज और इन्वेस्टर्स थे, वैल्यूएशन कुड वाज अ चैलेंज. वी ट्राइड टू गेट हिम ऑन बोर्ड फुल्ली बट वो वैल्यूएशन की वजह से But it नहीं is हो not पाया. mentioned anywhere. I दैट इज नॉट tried. मेंशन एनीवेयर एवरीवेयर. जो भी आप शार्क टैंक पे डील देखते हो हाँ, खाली 30% एक्चुअली में होती है थ्रू. Oh, या तो- बट आई मेट हिज टीम, आई मेट हिम वंडरफुल पीपल, हाँ. बट हमने उसका पैसा कंपनी में नहीं उठाया. Okay, so अभी Aman has no equity in your company? No, Aman doesn't have any equity in my company. And obviously for us, see now we are coming from a space जहाँ पे बहुत पैसा गया था. हम्म. $10 million फ्लाईरोप का गया, फ्लाईरोप $1 का. million हमारे इन्वेस्टर ने Right. डाला, हमारा गया, तो $11 million हम्म. प्लस 50 करोड़ का रेवेन्यू जो हम अर्न कर चुके हैं, सब कुछ बिजनेस में गया, राइट. सो फॉर मी इट वाज सॉर्ट ऑफ अ चैलेंज कि 2020 के बाद, कोविड के बाद, आई हैड टू टर्न दिस बिजनेस प्रॉफिटेबल एंड स्केल इट, व्हिच आई हैव डन. हम्म. आई बेसिकली गॉट द बिजनेस टू अबाउट 20+ स्टोर्स एंड हिट प्रॉफिटेबिलिटी, जो सबको लगता था कि स्पेस में हो ही नहीं सकता है. हम्म. So now is a good time for me to raise money. So now Ah. this year we will raise funds. Okay. So now see model is proof. एक हमने वो एक बुकलेट रेडी है हमारा, अब रेप्लिकेट करना है बस. 20 स्टोर ऑलमोस्ट बन गए हैं, 20 से 100 की जर्नी करनी है नेक्स्ट, एंड इट विल बी लाइक अ फास्ट जर्नी नाउ. So from numbers point of view, where are you standing? Revenue कितना कर रहे हो आप? So last year we did about 10 crores GMV. 10 crore GMV. GMV yes. उससे पहले 5 किया, उससे पहले 2 किया. Ah, So like and 2 से पहले तो 2 was COVID. कोविड ईयर्स. 2 से हाँ, पहले एक 75 lakhs किया, uh-huh. उससे पहले 8 किया, उससे पहले 15 किया. So basically, We were at a 15 crore revenue हाँ, with a lot of burn, हाँ. came down to 8 crore revenue with Mhm. less burn, Mhm. came down to 0 revenue with COVID, Mhm. then again started again building. So अभी last year you did 10 crore Yeah, profitable. profitable and 10 crore. That's a big thing, no, in this Yeah, space. it Profitable is big thing. It is. I mean, after so many ups and downs, if you are making the company profitable at this stage, like it's insane. So last Crazy. time when we hit that 10-15 crore revenue as Huh, Flyro, we were huh. burning 25 crores. Oh, and now it is profitable. Perfect. Congratulations. Cool. I think मैंने तो मुझे लगा ये फंडिंग हुई है, तो मैंने उसके ऊपर और 2-3 क्वेश्चंस डाले थे, क्योंकि मैंने गूगल भी किया ना, तो कहीं आई कुड नॉट फाइंड. वो कहीं नहीं आता ना, हाँ. it's not stated. Right. So my next question, Achal, is कि we talk about sustainability and circular economy, कि रेंटल से ये दो चीज़ें सॉल्व हो रही है. बट डोंट यू थिंक कि बाई रेंटल और कंपनीज लाइक फ्लाईरोप और भी कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं इस स्पेस में, they are just making luxury products available or accessible to people and not actually solving sustainability? Okay. Two things. Hmm. The garments that we are working with, ये usually one time wear है सबका. ठीक है. सबने एक बार ही खरीदा, एक बार पहना और कबर्ड में रख दिया. ठीक है. Now with our space currently we are averaging lifetime as six wears. 6 years. हाँ. Okay. So instead of one time wear, we made that 6 wears. Then we realized कि हम खुद भी क्यों नया manufacture करें. That C2C model makes it 7 wears. Right? Approximately 7 wears. So here circular तो घूम रहा है, एक ही garment लोग ज़्यादा बारी पहन रहे हैं. Also एक गारमेंट को बनाने के लिए, आई जस्ट टॉक अबाउट वाटर, लेट इट बी लैंडफिल बाद में छोड़ देते हैं, जस्ट वाटर. कैन यू गेस हाउ मच वाटर इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड वन एथनिक गारमेंट इन टर्म्स ऑफ लीटर्स? 100 liters? 24,000 लीटर्स. 24,000? 24,000 लीटर्स. एक गारमेंट को बनाने में? एक एथनिक गारमेंट में इतना पानी लगता है. अगर मैं आपको विजुअल उसका वो दूं ना, इट इज लाइक जो रेजिडेंशियल सोसाइटीज में स्विमिंग पूल होता है, दैट मच. Insane. Okay, let me process that. Okay, so basically this is the water consumption that a garment takes, and again there is a lot of landfills which happens with fast fashion or anything which is not being used, right? And if you look as a country, we are, I mean, thrifting, westerns में भी thrifting और pre-love वाले concepts आ रहे हैं, and acceptance दिख रही है अभी, जो पहले नहीं थी. थोड़ी सी acceptance, I can see some businesses doing decently okay in pre-loved and thrifting category. Where we talk about कि एक बार ही खरीद के एक बार ही पहन के मत रखो या मत फेंको, use it multiple times. Awesome. Achal, you're in this space for last 10 years, right? And I'm guessing ki the COVID year must be the worst part of this journey, is it? Acquisition plus COVID, yes, worst part of the journey, 2 years. How did you navigate that? What was going in your head कि should we close it? अभी कभी ऐसा हुआ कि यार
अब ना रन करने का मन नहीं हो रहा है, दिस विल नॉट वर्क? कभी ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे आपको लगा कि बंद करते हैं, ख़त्म करते हैं? काफ़ी बारी ऑनेस्टली, काफ़ी बारी, और स्पेशली जब मैं किसी लॉयर फ्रेंड का वो चेक देखती हूँ ना, उसको नया फ़ी का चेक मिला है, तब तो बहुत मन करता है कि व्हाट एम आई डूइंग विद माय लाइफ. बट नो, ऑन अ वेरी सीरियस नोट, कोविड एक टाइम था, वो 1-1.5 महीना था सिर्फ, व्हेन आई वाज़न्ट श्योर अबाउट द बिजनेस. सिर्फ 1 महीना ऐसा था कि अब ये क्या करें, अभी हमने अक्वायर करा है, इसके लिए भी लोन ले लिया है, एंड नाउ व्हाट डू वी डू. बट जैसे ही वो थोड़े से कस्टमर्स के पर्सनल मैसेजेस आए ना कि हमारा शादी है, प्लीज आउटफिट डिलीवर करा दीजिए जैसे मर्जी, दैट इज व्हेन आई गॉट बैक ऑन माई फीट. एंड देन समटाइम्स द टीम पुल्स यू. तो हमने टीम को, अब सबके साथ होता है वो, आई थिंक व्हेन यू डोंट फील लाइक द लो डेज, व्हाट आई डू इज आई जस्ट गो एंड अटेंड वन मीटिंग एंड आई एम बैक. सो आई फील वो डेज तो सबके साथ ही आते हैं, वो नीचे जाते हैं, वो हर एक लाइफ में हर एक चीज के लिए होते हैं, नॉट जस्ट बिजनेस बट अदरवाइज ऑल्सो. यू फील लाइक लेट्स गिव अप, बट यू अल्टीमेटली डोंट, राइट? Right. Acha, I might be wrong here. One thing that I observe in a startup space is कि if I talk about our numbers now, so we see roughly 70-75% male, 20-25% female जो हमारे content को consume करते हैं. और in any अगर किसी बिजनेस की बात कर लो या startup space की बात कर लो, first I want to understand why there is this. Being a female founder, you understand this space a little more better. Why do you think there is this much difference? Plus, कि being a female founder, do you see any kind of disparity or people are not letting you do things, something like that? अच्छा, as a female founder. As a female founder, yeah. So see, I always say the CEO position में ना male female gender नहीं लिखी होती है. Exactly. You have to do what you have to do. हाँ. And somehow I feel, Jamil, that I try to take that garb. I'm a lawyer. उससे बहुत फर्क पड़ता है मुझे, तो मेरे को ऐसी सिचुएशन में कभी आना ही नहीं पड़ा है अभी तक. लाइक यू नो, विद इन्वेस्टर्स आल्सो आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फुटिंग बिकॉज आई एम अ लॉयर. So I've always got that footing, and literally if you're a lawyer and you run a business, you do a lot of things well because you know काफी चीजें आप खुद solve कर रहे हो अपने लिए, right? So I think for me, I come across stronger with that qualification and with that little experience. And in terms of customer, जो आप बात कर रहे थे कि कैसा percentage है, फ्लायरो वी कम अक्रॉस एज अ वेरी सुपर विमेन ओरिएंटेड ब्रांड कि लगता है 100% औरतें ही दिख रही हैं, बट ऐसा नहीं है. हमारा 40% कंज्यूमर आदमी है, एंड इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यूज एज वेल. एंड हमारे लिए व्हेन इट केम टू कन्वर्जन्स, मेन वर्कड बेटर देन विमेन. व्हाई? बिकॉज सी व्हेन यू टॉक टू अ गाय अबाउट ट्राइंग रेंटल्स, तो 3 एस्पेक्ट्स हैं. इमोशनली नॉट अटैच टू द क्लोथिंग. कौन सा इंसान अपनी शेरवानी पकड़ के जिंदगी भर बैठा है, राइट? सेकेंडली, इजी अडॉप्टर्स ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी. एंड थर्डली, सेविंग मनी. पैसा बच रहा है, समझ आ रहा है, सिंपल मैथ. सो मेन हैव बीन बेटर कन्वर्जन, converting people for rental as a service, and even at stores our conversion rate is higher and faster. बिकॉज वो आ ही रहा है तब जब द गर्ल हैज डिसाइडेड. बिल्कुल. तो उसको तो खाली ये और साफा और स्टोल मैच करना है, बाकी तो व्हाटएवर शी इज वेयरिंग हैज टू जस्ट कॉम्प्लीमेंट हर, राइट? Awesome. Right. In next 5 years or let's say 10 years, how do you want people to perceive or talk about Flyrobe? So Flyrobe, I think today we talk about ourselves as making India rent. But I think next 5 years, I would want people, rent is sure, but best designs, best exclusive designs, best availability, good quality products. All of that would be the next steps. कि रेंटल तो समझ आ गया, अब तो रेंट तो कर ही रहे हैं सब लोग, बट हम लोग के पास सबसे अच्छा कलेक्शन होना चाहिए. एज अ फ्लायरोब शो, यू नो कि यूनिक कलेक्शन मिलेगा आपको, डिफरेंट डिजाइन मिलेंगे, एंड यू वुड लाइक टू ऑलवेज कैटर टू ऑल प्राइस पॉइंट्स. एंड ज्योग्राफी वाइज वो ऑब्वियसली ज्यादा कम क्वांटिटी बढ़ा कर सकते हैं, बट हाँ, वी आर लाइक वी स्टार्ट एट 2000 एंड वी गो अप टू 1 lakh रेंटल्स. That's insane. That's an insane journey. I mean, you have seen enough ups and downs and the kind of stage you have reached now, which is really great. I hope the company will grow more and we will get to see a lot about Flyrobe. And I literally enjoyed this conversation, Achal. If you have anything else, for example, let's say actually I ask this question to every guest that who comes here. Ki, let's say if someone is starting today in your space, what one advice you will have for them? So if you're starting in MySpace, it's brilliant. आप जो हमने पैसा खर्चा है बहुत सारा अवेयरनेस के लिए, आप उसको प्लीज यूज कीजिए. Like literally we spent about मतलब more than 50 crores have been spent in just building marketing
फ्लाईरोब एज अ रेंटल सर्विस, तो आपको यूज कीजिए. टुडे द ब्लेसिंग इज कंटेंट इज किंग. आपको फेसबुक एड भी नहीं खर्चना. जो हम पहले 2 करोड़ रुपए खर्च रहे थे पर मंथ फेसबुक एड्स के लिए, आपको वो भी नहीं खर्चना. गुड कंटेंट विल गेट यू अक्रॉस द यूजर. सो गुड प्रोडक्ट, गुड कंटेंट, प्लीज डू एन ऑफलाइन थिंग कि आपका एक स्टोर फ्रंट तो है ही है, कि आप स्टोर से शुरू कीजिए ये स्पेस को. एंड for us now, next is getting a lot of AI in this space to work better on analytics, data, all of that. So उससे भी आपका काम भी easy होने वाला है लाइफ में, और डेटा बहुत अच्छा आने वाला है. I would love to understand about this AI thing. How do you think you are going to integrate it, and So of what course, kind of outcomes are you expecting? Yeah. So backend में तो अभी we've been using a lot of AI products, and now next step we're my co-founders Ricky and Karan are all tech guys, so we are also building a lot of AI support for the brand in terms of analytics. But अभी content creation और इन सब में streamlining we are just using tools. वो सब तो कर रहे हैं. Plus what I vision is कि हमारे लिए ना जब वेबसाइट था तो डेटा कलेक्शन बहुत ईजी था, कि कौन सा प्रोडक्ट पे जा रहे हैं लोग, लाल कम, रेड पिंक ज़्यादा, category wise. It was very, you can trace the footprint, right? With stores it becomes a little difficult. कि feedback है, वो human intervention बहुत है. Staff ने क्या बताया, हर store का gather करना. So we want to do AI enabled cameras at all stores. कितने लोग कौन से रंग, कौन से कैटेगरी के पास ज्यादा जा रहे हैं, उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे, उठा के ट्राई रूम में लेके जा रहे हैं कि नहीं लेके जा रहे, WID लिंक कर कितने लोग बिलिंग काउंटर पर आए हैं. सो बाय द एंड ऑफ द डे वी नो द रिपोर्ट ना, कि ये कलर, ये कैटेगरी, ये इधर प्रॉब्लम है, ट्राई रूम के बाद उसने बुक नहीं किया, बुकिंग डेटा अगर अवेलेबल है तो ये प्रॉब्लम था. So many things we can just pick up in a matter of seconds. A lot of insights from customers' point of view, and then maybe you so when you're building शुरू के आपके 1-2 स्टोर से तो आपको खुद खड़े होकर फीडबैक्स लेने चाहिए. बट जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो खुद खड़े होकर, या फिर वो ह्यूमन फीडबैक चेन बड़ा इनएक्यूरेट हो जाएगा. हाँ, इनएक्यूरेट, एंड वो पॉसिबल भी नहीं है. यस, इवन इफ यू आर डूइंग इट, वहाँ पे एफिशिएंसी काफी ज्यादा कम होगी, राइट? सो वी ट्राइंग आवर बेस्ट कि नेक्स्ट आई थिंक आज से 12 महीने में हमारे पास काफी सारे AI टूल्स होंगे टू मेक दिस जर्नी more interesting. Awesome. It was great knowing you, Achal. I loved the conversation. I hope लोग जो देख रहे होंगे इसको, they will enjoy and learn something from it. So thank you so much once again for coming. Thank you. Thank you. Yeah.